All right, we're live. Assalamu alaikum, everybody. Welcome to PSLnama at DN Sport. I'm your host, Waqas. I have with me, as usual, Hassan Bhai, Sohaib, and Romeo. I mean, Sahfqat. So, yeah, great game, boys. शफकत शफकत भाई शफकत भाई कैसे हैं और कैसी है आपकी तबीयत? यार तो वैसे आज सुनने में आया कि आज मेरी हमारी काफी तबीयत अच्छी जा रही है बात। बहुत अच्छी है. You know what? Lahore Qalandars have literally एक तरह से they have slapped one of the best teams in the tournament. Like Islamabad United were coming after playing I guess Quetta Gladiators ना. और अगर कल की predictions को हम लोग याद करें, कल जो predictions की थी हमने यहाँ पे, तो three of like you were going for Islamabad United and I was like that's not happening. Islamabad United are coming to play against Qalandars जिन्होंने एक मैच ऑलरेडी अपने होम पे खेली और बैक टू बैक कंसेक्यूटिव गेम्स है. तो इट्स ऑल फन डेज, अ लॉट हैपनिंग. Yeah, I mean, like, अब I would want to यहाँ पे say कि कल हमारी predictions में I think all three of us said Islamabad and Sahfqat was the only guy who was saying Lahore. So yeah, well done, Sahfqat. Great game. Yeah. Before I actually go to Sohaib, एक यहाँ पे थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स के साथ एक थोड़ी सी स्टोरी शेयर करना है. तो Sohaib is actually a क्वेटा ग्लैडिएटर्स फैन, राइट? और इसकी टीम जो है बेचारे की बड़ी हार वार रही है पिछले पता नहीं कब से. तो जब ये बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया तो ही वाज लाइक, इसने ग्रुप में ना एक शर्ट की तस्वीर भेजी, और if you can just pull that picture of the shirt, so this is the shirt that he said he'll wear and it says yeah science, which is basically a catchphrase from Breaking Bad, right? इसने क्या ऐसी इसकी सोचो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लोगों की क्या किस्मत है कि ये 2 दफा इसने बोला है कि अगर पिछले गेम में मुल्तान जीती, इस्लामाबाद जीती, आई थिंक it was Quetta was Islamabad first, तो मैंने बोला कि अगर क्वेटा जीतता तो I'll wear this as sarcasm on the sign. Because Islamabad and its relation to science, right? So Science and Saeed Ajman and all now. So and yesterday I said कि यार अब इस्लामाबाद जीतेगी ना तो then I'll wear it, ये नहीं तो उनके लिए पहनूंगा मैं. आज वो हार गए, so I'm wearing some other shirt. So जिस दिन किसी टीम को हरवाना होना तो मुझे बोल देना कि यार मैं शर्ट का बोल दूं तो वो टीम हार जाती है. अब बस सही है. अब कराची तो को हराना नहीं, कराची पे ये सब चीजें चलती नहीं है क्योंकि लाइक वो हम अपना खुद कार्ट ला रहे होते हैं तो इसके कार्ट की जरूरत नहीं है. अच्छा, तो हसान भाई, लाइक इफ यू कैन come back to the game, right? Because this was actually a very, no, I won't say strange outcome, because like Lahore is strong, very strong. उनके players बहुत जबरदस्त हैं. But in the sense that you don't see Islamabad like getting knocked over for 110. So strange in that aspect. And Islamabad being your home team, so like if you can point out very quickly कि कहाँ गलतियाँ हुई, where is it that you think they lost the game? Yeah, more than Islamabad, I think what went right was for Lahore. Even though Islamabad kept chipping at their wickets, they did not let the run rate go down. It was kind of reminding me of that Afghanistan and Pakistan match, जो बहुत ही कोई high steam match था जो last T20 World Cup में हुआ था. उसमें भी ये हो रहा था कि मतलब या तो विकेट गिरती थी या छक्का पड़ता था. But Qalandars went one up on it. कि Abdullah Shafiq once again kick-started it. उस वक्त तक वो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे. What a turnaround he's doing for Lahore. मतलब उसने I think 180 plus के strike rate पे कोई 45 और score किया. And not just that, जब वो भी out हो गया and then you know the next guy came in. पहले Sam Billings ने take over किया, फिर सिकंदर रजा, डेविड विसा, राशिद खान ने भी एक दो अच्छे shots मारे. And you know that's how they ended up at 200, because जब wicket गिरती थी they still kept at it. And Islamabad, you know, so the thing is कि एकदम से feel ही हो रहा है. And you know Rashid Khan did have an off day yesterday, but today he came good.
एंड देन सडनली लाहौर की जो है ना लाइनअप वो और स्ट्रॉन्ग लगी थी विद शाहीन जमान एंड रऊफ, साथ राशिद खान, फिर वेसा भी अच्छे करा रहा था, सिकंदर रजा भी अच्छे, मतलब दे आर ऑल डिपेंडेबल बॉलर्स एंड यू नो दे हैव अराउंड 6 ऑफ देम। तो कहीं से अगर आपको मार भी पड़ रही हो ना तो अब कवर आ गया है लाहौर कलंदर्स के पास। बट हैविंग सेड दैट, द थिंग इज कि अभी तक टूर्नामेंट का ये टेम्पलेट चलना शुरू हो गया किस्म का कि जो टीम चेज कर रही होती है ना टू हैव इश्यूज इफ यू चेजिंग। तो जस्ट माय 2 सेंस, क्विक समरी कि थोड़ा सा ना टॉस I think we're having some technical difficulties in getting Hassan Bhai to connect Yeah. smoothly to the stream. अच्छा, Sohaib, if you can carry forward the point जो हसान भाई बता रहे थे. यार वन थिंग दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग, ये हमने कल स्पेशली डिस्कस किया कि लाहौर कलंदर्स की जो वीकनेस हमें नजर आ रही थी मिडिल ऑर्डर में वो परफेक्टली कवर हो गया। एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू अब्दुल्ला शफीक फॉर हाउ ही हैज प्लेड इन बोथ मैचेस, स्पेशली टुडे। कल भी बहुत अच्छा खेला। आज की स्पेशल बात ये थी कि आज की प्रॉब्ली पिच थोड़ा टू पेस थी। फर्स्ट इनिंग्स में लग रहा था कि बॉल बैठ भी रही है, एक आध बॉल उठी भी, तो उस पिच पे उसकी इनिंग्स और ज्यादा अच्छी साबित, मतलब और अच्छी नजर आ रही है 180 और के स्ट्राइक रेट से खेलना। और इसमें एक बात ये भी है, व्हेन यू टॉक अबाउट लाहौर कलंदर्स, पहली बात इस्लामाबाद यूनाइटेड से आई वाजंट रियली एक्सपेक्टिंग टू देम टू क्रम्बल दैट वे कि वो 90 ऑल आउट हो गए। बट अगेन पिच थोड़ी सी मुश्किल थी, बॉल फंस रहा था। राशिद खान ने उसको यूटिलाइज किया। एंड डेविड वीजा, व्हेन यू लुक एट Lahore Qalandars bowling, you talk about Shaheen, you talk about Haris, Rashid and Zaman, and probably as a batting side आप सोचते हो कि शायद आप डेविड वीजा को टारगेट कर सकते हो, but he is a very smart bowler, he uses his cutters well, links well, very smart bowling and he gets wickets। आज भी उसने विकेट लिए। and then they have सिकंदर रजा, so bowling तो jam packed है ना। और मिडिल ऑर्डर जो है उसको अब्दुल्ला शफीक और सैम बिलिक्स ने अच्छा कर दिया। एक चीज जो लाहौर कलंदर्स में बैटिंग में नजर आती थी वो फखर जमान का था। फखर जमान प्रॉब्ली PSL लेजेंड कह सकते हो, लाहौर कलंदर्स के लिए तो है ही। लेकिन व्हेन यू यूज्ड टू टॉक अबाउट लाहौर कलंदर्स स्कोरिंग इन द पावर प्ले या लंबी इनिंग्स लेके जानी हो या स्टेबिलिटी, हर चीज में आपको एक ही नाम नजर आता था, दैट वाज फखर जमान। पिछले साल थोड़ा अब्दुल्ला शफीक ने कंट्रीब्यूट किया तो वो थोड़ा डिवाइड हुआ। नाउ ही हैज मिर्जा ताहिब विद विद हिम इन द पावर प्ले, और आगे अब्दुल्ला शफीक का क्वेश्चन है और सैम बिलिंग्स का भी क्वेश्चन आ गया। सो little less responsibility on Fakhar, so probably he can express himself better. And I like Fakhar as an opener in a sense कि Fakhar then sets pace of the game. वो अपने हिसाब से पेस सेट करता है जो प्रॉब्ली नेशनल टीम में उसको नहीं करने को मिल रहा है, हमारे सेट ओपनर्स मौजूद हैं। तो फखर जमान वन डाउन खेलता है, लेकिन लाहौर कलंदर्स में ही इज द गाय हु सेट्स द पेस फॉर लाहौर कलंदर्स। डॉट्स कर भी ले तो वो पावर प्ले यूटिलाइज कर सकता है, स्पिन भी ठीक ठाक खेल लेता है, हिट कर लेता है, पेसर्स को भी हिट करता है। एंड देन आगे अगर लंबी इनिंग खेले तो एंड में भी फिनिश अच्छा करता है। सो अब्दुल्ला और बिलिंग्स के आने से ये भी एक फायदा हुआ है उनको कि फखर जमान को थोड़ा ब्रीदर मिला है। I think I tweeted about this and I said कि I mean I said something, I don't know if this is, but I'll say it here. I mean कि लाहौर की जो बैटिंग है that's more of their trump card than actually लाहौर की बॉलिंग, because in both games जो आज उन्होंने कल भी खेला था जो, और आज भी जो गेम खेला है उन्होंने, उसके अंदर they have kind of like won the game while they were batting in the first inning. एंड क्योंकि उनकी बॉलिंग अबव एवरेज है, बहुत अच्छी है, अबव एवरेज तो नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी है। फॉर फ्रेंचाइज दे हैव वेरी सॉलिड अटैक। तो जब वो इस तरह का कोई स्कोर चढ़ाते हैं ना 200 या 220 या 240 जो उन्होंने कल चढ़ाया था, तो दूसरी टीम फिर इफेक्टिवली चली जाती है गेम से। फिर देन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि कितने रन से वो हराते हैं। तो आई थिंक ये एक बड़ा ही साइकोलॉजिकल एक इंप्रेशन जाता है बाकी फ्रेंचाइजेस को, क्योंकि कल इन्होंने उनको हराया था, पिशावर को हराया था कल इन्होंने, राइट, पिशावर को हराया था। एंड आई थिंक वो चीज ना इन्होंने हावी की उस पे लाके, इस्लामाबाद पे लाके, क्योंकि इस्लामाबाद वो टेकिंग विकेट्स यार, उनकी पूरी इनिंग में इस्लामाबाद
हर पार्टनरशिप जब लगती थी, इस्लामाबाद यूज्ड टू कम एंड मतलब उनके बॉलर्स आते थे और कोई कोई ना कोई विकेट ले जाता था, लेकिन दे स्टिल एंडेड अप विद 200. सो 50 नहीं स्कोर करना थी किसी को भी। 50 भी किसी को स्कोर नहीं करने दी, राइट? तो इसका ये मतलब है कि उन वो लाहौर कलंदर्स की जो बैटिंग है ना, अब आई थिंक उसी लेवल की है, और डेयर आई से आई वुड गो ऑन टू से कि ज्यादा अच्छी है उनकी बॉलिंग से, which is why they probably are tournament favorites for me. Hassan, you got disconnected. Yeah, थोड़ी देर I was पहले. going on epic Martin Luther King level rant. So I think technical levels पे कुछ issues आ गए थे. So basically, my 2 cents were very quickly to summarize. Yeah, the good thing that Lahore did was, even though Islamabad kept chipping at them, they kept scoring runs with a good rate, and they ended up with Right. 200. And up seeing ये हुआ है कि with their bowling, they have 6 decent good T20 bowlers now, with Rashid coming in form. David Waser ने भी wickets ली, Rashid Khan ने भी ली, Sikandar Raza is doing well. Then you have Zaman, Haris, and Shaheen. So relentless attack हो गया, and middle order is firing, which gives the license to the top order. And I think Abdullah Shafiq kind of turned it around. 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से कंसिस्टेंटली खेल रहा है, और उसने आज भी 45 आउट किया है। उससे पहले तक भी दे वर स्ट्रगलिंग जब उनका एक ओपनर आउट हुआ था। सो आई थिंक नाउ ना suddenly Lahore seems like the complete unit with 2 or 3 guys coming in, and it feels like they might be the team to beat, because वही वाली बात के बॉलिंग जो है ना वो रिलेंटलेस होगी, कहीं पे ब्रीदिंग स्पेस नहीं नजर आ रही। ब्रीदिंग स्पेस नहीं है कहीं पे। हाँ। One of them has a bad day, so the sixth bowler can fill in for them. So let's see on how it progresses versus someone like Multan now going forward. Right. Sahfqat, I'm going to come to you and I'm going to ask you a very, very interesting question. With Lahore like absolutely going hammer and tong against every side that they're meeting, how in bloody God's name do they end up losing to KK? Not once but twice. एक पिछले सीजन में और फिर एक जो follow up game वो इस सीजन में खेलते हैं. So how does that happen? I mean, like if we look at from a cricketing perspective, right? We say कि चलो like bad day. बट बैड डे किसी एक डिपार्टमेंट में होगा. इट सीम्ड के लाहौर काइंड ऑफ लाइक लॉस्ट द प्लॉट अगेंस्ट कराची इन बोथ जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट्स फॉर 2 consecutive games. सो इज दैट समथिंग अदर टीम्स वुड बी लुकिंग एट के केके के खिलाफ ये जो गलतियां करते हैं, कैन अदर टीम्स बैंक ऑन दैट एंड एक्सप्लॉइट इट टू द पॉइंट वेयर लाहौर कैन बी स्टॉप्ड इन द प्लेऑफ्स और पोटेंशियली इन द फाइनल्स? आई थिंक अगर तो हम लास्ट सीजन वाली जो हमारी लॉस था उसको देखें तो दैट वाज जनरली लाइक आई मीन दे हैड बीटन अस के लाहौर अपने प्रॉपर उसे खेल रही थी स्ट्रेंथ्स के साथ. बट नाउ व्हेन वी फेस कराची दिस टाइम, तो आई डोंट थिंक कि वो एक तरह की वो जो 11 थी वो इवॉल्व्ड 11 थी लाहौर की. आई वुड से कि एक तो फैक्टर ये है कि लाहौर coming into PSL 8 and playing all those games early on against a very close game against Multan, वो हार भी सकते थे. Then a very good, I mean they lost against Karachi. Those were the games when their 11 was evolving and playing away from home. One factor is that क्योंकि अब वो आपके पास शाय होप नहीं है, अब आपके पास अब्दुल्ला शफीक नीचे आता है, अब आपके पास सैम बिलिंग्स आता है, अब ताहिर बेग थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट है. फखर को पता है कि अगर मैंने कंट्रीब्यूट ना भी किया तो नीचे से लोग पकड़ लेंगे. एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स दैट आई नोटिस्ड टुनाइट जो एंड पे जाके रन्स हुए. तो लाहौर हैव काइंड ऑफ इवॉल्व्ड इनटू वेरी गुड टीम. एक तो फैक्टर ये है कि उस टाइम पे वो लोग दे वर नॉट इनटू देयर जोन जब ये लोग कराची से आ रहे हैं, एकदम कोलैप्स कर गए थे. दूसरी बात ये थी कि आई गेस थोड़ा सा एक विकेट्स का और कंडीशंस का भी है कि कराची रियली डिड वेल विद देयर बॉलिंग लाइक इन टर्म्स ऑफ व्हेन दे वर डिफेंडिंग देयर टारगेट. हालांकि अगर इस जो अभी प्लेइंग 11 है आफ्टर विनिंग 2 मैचेस अगेंस्ट आयू एंड पीजी, इनके सामने 185 जो लास्ट टाइम कराची ने पोस्ट किया था, दैट वुड लुक लाइक अ वेरी लाइक गेटेबल टोटल. जिस तरह से सब लोग रन्स कर रहे हैं, आज सबने रन्स किए हैं और किसी ने रन बॉल ही खेला, सबने ज्यादा ही खेला है. I have the scorecard with me. I'll read the strike rates. Mirza Beg is 117. Fakhr is 156. Abdullah is 187.
Sam Billings is 143, Hussain Talat 120, probably a bad outing. Sikandar Azash 230, David Visa is 200, and Rashid is 150. So everybody basically just went completely all systems go during the game. Continue. So basically लाहौर को अब ये मसला नहीं होगा कि टीम्स कराची वाले मैच को एज अ टेम्पलेट बना के इनको हरा सकती हैं, बिकॉज बहुत बड़ा चेंज है बैटिंग में इन T20 क्रिकेट। नंबर 3 और नंबर 4 पे दोज पीपल मैटर, और पहले वो आपके शाहिद होप और कामरान गुलाम थे, और अब वो आपके सैम बिलिंग्स और अब्दुल्ला शफीक है। और स्पेशली अब्दुल्ला शफीक हैज लुक्ड इन अ वेरी डिफरेंट टच। ठीक है, वो नेशनल T20 कप में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में रन्स करता था, स्पेशली वाइड बॉल की अगर हम बात करें, जिस तरह से वो न्यूजीलैंड में अपने T20 डेब्यू पे फंस रहा था। न्यूजीलैंड एवरीवन रोट हिम ऑफ जब मिसबा ने इसको इंजर्ड हुआ था और मिसबा ने इसको ओपन करा दिया था। तो नोबडी हैड, अभी भी पर्सनली भी माय परसेप्शन ऑफ अब्दुल्ला शफीक द T20 बैट्समैन इवन आफ्टर परफॉर्मिंग इन PSL 7 वाज लाइक थोड़ा स्लगिश होगा, आहिस्ता से चलेगा, बट ही हैज मेड श्योर कि वी डू नॉट मिस हैरी ब्रुक। मुझे याद है काफी मीम्स भी बन रही थी जब शुरू में लाहौर हारा था और रन्स नहीं हो रहे थे कामरान गुलाम से, शाहिद होप से, तो पीपल वर मिसिंग हैरी ब्रुक, बट बिलिंग्स एंड स्पेशली अब्दुल्ला शफीक हैव मेड श्योर कि उनकी ये वाली कमजोरी भी चली जाए। और दूसरी उनकी एक बात और थी कि जो आपकी पहले वाली मैचेस जिसमें आपके टॉप ऑर्डर में एक में फखर जमान अच्छा कर गया, अब्दुल्ला शफीक अच्छा कर गया, आज इफ वी सी के हाफवे मार्क पे लाहौर वर अराउंड 82 for 2। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड कुछ अच्छा कर लेता तो दे कुड हैव स्टॉप देम अराउंड 160 165, राइट, बट वो 30-35 रन्स एक्स्ट्रा चले गए। दैट इज बिकॉज कि इनका 5 6 7 दे कैन बोल 4 कंप्लीट ओवर्स and they can whack the ball around, which they did tonight, and which was to Qalandars' advantage, took them to a very good total, and in return उन्होंने बॉलिंग इस तरह की, स्पेशली आई वुड से कि ये वीजा ने स्टार्ट किया था, वो जो जहां से क्रम्बल करना स्टार्ट हुई है, द वे ही पुट दैट बॉल टू आजम खान, दैट वाज वेरी गुड। मतलब इसके ऊपर मैंने एक थोड़ी सी चीज नोटिस की है, जब मैं खुद लेग ब्रेक करता था तो मुझे किसी ने समझाया था कि बैट्समैन की बैकलिफ्ट को चेक करो, इफ द बैकलिफ्ट is facing towards point or third slip, it means he is going to be an onside player, right? If the backside is totally back, it is totally towards the keeper or first slip or between that, he's going to play straight well. And if it is थोड़ी सी जाती है लेग कीपर की लेफ्ट साइड पे, तो he is going to play offside well. तो आजम का अगर हमने देखें तो आजम ने जो हसनैन को शॉट मारा था वो भी it came from point, bat came from point, गली की तरफ से आया था और फिर लेग की तरफ जाता है, और आजम का नेचुरल भी यही है। तो द बेस्ट थिंग अबाउट वीजा's dismissal ball to आजम was कि आजम ने सारा कुछ कवर कर लिया था, स्टंप्स भी कवर कर लिए थे, बैट भी आ गया था, बट वीजा डिड रियली वेल कि उसके पास स्पेस नहीं है, पर उसने बॉल को आगे किया और उसका एक जो स्कोरिंग जोन था या बैट जिस जोन के अंदर घूमना था, उसने बैट उतनी पावर से घुमाया था। I can swear on that क्योंकि उसकी बैट स्पीड बहुत ज्यादा है, प्लस इज गॉट पावर। तो अगर तो वो बॉल जोन that would have gone, but Visa did really well और वहां से वो क्रम्बल करना स्टार्ट हुए। तो so many things have fallen for Lahore। एक और चीज जो वीजा बहुत अच्छी करता है कि वो जब बॉल करा रहा था तो रिप्ले में मैंने ये चीज नोट की कि he wasn't holding the same like the way that pace bowlers hold, वो ऐसे यूं करके पकड़ रहा था and he's like releasing it as a pinch into like the pitch, तो क्या है into the surface, और वो जब यूं करके फेंकता है ना तो it kind of like अब इसको हम समझाएं कैसे in viewer terminology I don't know, but there is a thing called in cricket called knuckle ball। knuckle ball जो होती है ना वो आपके नकल्स में बॉल जो है वो प्लेस्ड होती है और आप उसको नॉर्मल सीम पोजीशन की तरह फेंकते हो, लेकिन बेसिकली वो चेंज ऑफ पेस के लिए होती है। तो जो आजम डिसीव हुआ था वो बेसिकली इसलिए हुआ था कि उसने अप सीम फेंकी थी लेकिन नकल बॉल फेंकी थी, तो आजम उसकी लाइन तो कवर कर गया लेकिन उसकी पेस उसको नहीं समझ आई, जिसकी वजह से व्हेन ही स्वीप्स तो वो डिसीव हुआ। और उसके बाद आई थिंक आजम ट्राइड टू गेट आउट ऑफ द लाइन एज वेल, क्योंकि वो बाहर निकला था थोड़ा सा ऑफ स्टंप के, तो आई थिंक ही ट्राइड दैट। बट सोहेब, आई एम गोना कम टू यू नाउ। एक चीज मुझे बताओ कि आई मीन लाहौर कलंदर्स की टीम तो अभी बहुत फॉर्म में भी है और हर चीज मतलब उनकी एवरीथिंग्स फॉलोइंग फॉर देम इन द राइट प्लेसेस। डू यू थिंक देयर इज अ एलिमेंट कि बाकी टीमों ने अपनी 11s
या जो है स्क्वाड्स इतने तगड़े नहीं बनाए, जिसकी वजह से इट आल्सो काइंड ऑफ द बड़ी एग्ज्यूड हो जाती है परफॉर्मेंस के। हमें लग रहा है कि अच्छा ये टीम तो बड़ी ही जबरदस्त है इन कंपैरिजन टू द अदर टीम्स। तो इसमें ये एक फैक्टर हो सकता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द स्क्वाड्स इन द टीम्स आर नॉट, उसमें डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। यार आई थिंक इस्लामाबाद और मुल्तान के बारे में तो हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं कि उनके स्क्वाड्स और उनकी लाइनअप्स ऑलमोस्ट इन एवरी मैच व्हाट दे वांट टू डू उस हिसाब से तो ऑन स्पॉट होती हैं। सो टुडेज मैच यू हैव टू गिव क्रेडिट टू लाहौर कलंदर्स के। इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में उनकी लाइनअप में कोई ऐसी मसले मसाइल नहीं थे कि देवर कि कोई प्लेयर्स कम हो या उनकी बेस्ट 11 जो उनको चाहिए थी वो ना खेल रही हो। सो ये मसले मसाइल आपको प्रॉब्ली कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची या इवन पेशावर जल्मी में नजर आ सकते हैं, वेयर यू कैन से कि यार ये प्लेयर्स क्यों खेल रहे हैं या इनको खेलना चाहिए था, प्रॉब्ली दिस माइट हैव बीन देयर प्लेइंग 11, ये ज्यादा बेहतर होती। लेकिन आई थिंक इस्लामाबाद मुल्तान की प्लेइंग 11 तो परफेक्ट रही हैं। लाहौर कलंदर्स के साथ आप कह सकते हो कि इनकी थोड़ा सा बैड लग रही थी, कि बैड लग नहीं, लाइक इट्स पार्ट ऑफ द लीग कि सैम बिलिंग थोड़ा लेट शामिल हुआ एंड अब्दुल्ला शफीक वाज नॉट फीलिंग वेल, तो वो लेट जो है वो उसमें एज इन लीग में उसने लेट ज्वाइन किया। तो आई डोंट थिंक कि ये फैक्टर है। लेकिन लाहौर कलंदर्स प्रॉब्ली इज द लाइनअप जिनकी प्लेइंग 11 अब यू कैन से कि मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद से ऊपर आ गए। वन थिंग दैट लाहौर हैव डन वेल is, or yeah, what has happened well for Lahore is Abdullah Shafiq and Sam Billings दोनों ने हर किस्म की बॉलिंग को उठ किया। इट्स नॉट लाइक देयर इज अ फेवरेबल मैचअप दैट हैज बीन इनटू प्ले फॉर अब्दुल्ला और सैम बिलिंग्स। उन्होंने स्पिनर्स को भी मारा है और पेसर्स को भी आज ठीक ठाक पिटाई की है। एंड मतलब यू जनरली यूड फील देयर इज अ राइट हैंडर प्लेइंग, तो शादाब की लेग स्पिन प्रॉब्ली बिलिंग्स को या इवन अब्दुल्ला को फंसा देगी, पर आई थिंक शादाब के अगेंस्ट भी उन्होंने रन किए, जिशान जमीर को भी मारा। सो दैट्स अ प्लस कि मिडिल फेज में इफ द अदर टीम इज गोइंग फॉर अ स्पिन प्लॉय और अ पेस प्लॉय, दोनों को केटर प्रॉपरली कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इस्लामाबाद प्रॉब्ली लाहौर को फंसा नहीं पाई मिडिल फेज में। हाउ डू यू एक्चुअली, मतलब लाहौर को पकड़े कैसे? हाउ डू यू गेट देम टू नॉट, जिसे कहते हैं ना, शो और हैव दैट एग्रेसिव अप्रोच टुवर्ड्स यू? कैसे फंसेंगे कैसे ये? सोएब, इफ यू कैन एक्सपैंड ऑन। One thing that see, you said that you think that their batting trumps their bowling. I don't think that way. Their batting is really good, but bowling is phenomenal. I think they have to see एक हर बॉलर के डिफरेंट प्लॉयज होते हैं, एंड शाहीन का एक प्लॉय है जो तकरीबन सबको पता है कि वो क्या करने वाला है, सही है। लेकिन द अमेजिंग पार्ट अबाउट दैट थिंग इज कि वो फिर भी वही करता है एंड फिर भी उसको रिजल्ट मिलता है कि वो आगे गिरा के अंदर घुसाएगा बॉल एंड फिर भी वो पहले दूसरे ओवर में विकेट निकालता है। सो प्रॉब्ली बैटर्स हैव टू फाइंड अ वे टू अटैक देयर मेजर जो उनकी स्ट्रेंथ है। अगर आप समटाइम्स टीम्स जो है वो स्ट्रैटेजी बनाती है कि आप वीक लिंक पे अटैक करो, एंड समटाइम्स ये स्ट्रैटेजी होती है कि आप स्ट्रॉन्ग उस पर अटैक करके वहां आप उनका कॉन्फिडेंस मार दो तो वहां से सब चीज शेक हो जाएगी। So maybe they have to kind of try to target their bowling in some way, which is again, then how do you really target Shaheen? Do you go for the scoop shot early, जहां वो आगे बॉल गिराएगा आपको पता है, you do something about it? बिकॉज आई थिंक आज का जो गेम था, बेसिकली आज जो हम सोच रहे थे, वी वर ऑल थिंकिंग कि इस्लामाबाद इज प्रॉब्ली द ओनली टीम दैट कैन डिसरप्ट दैट फ्लो ऑफ शाहीन, using matchups, using like data, Yes. using strategies, and with Rehan and Chima being in Islu, you kind of expect them to think out of the box and curtail the behemoth that has Lahore Qalandars become. पर आज भी नहीं हो सका, मतलब they complete, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हार है। I mean पेशावर भी इस तरह नहीं हारी थी कल, तो एक चीज, अच्छा, just a small point that I'd like to make here. Sorry for cutting you guys off. असमें मैं ना अभी एक देख रहा था एक चीज, I just pulled up these numbers while this discussion was happening, तो इसलिए impromptu ये एकदम से आ गई है स्क्रीन। इसमें एक चीज ये नजर आ रही है कि when you were making the draft, right? So ये एक अच्छा, this is by the way assorted based on the top run getters in this current season till date.
इसमें ना कंसोलिडेटेड व्यू आ रहा है टॉप रन्स का. अच्छा, मिनिमम क्वालिफायर है 100 रन्स और मोर का. अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि when you're selecting a T20 team, right, you would probably want someone like Haider Ali, Iftikhar, I don't know, Guptill, Colin Munro to be there. आप ये स्ट्राइक रेट्स वाला कॉलम देखो ना, इसमें जो एक सरप्राइजिंग पिक आ रही है ना, जो टॉप बेस्ट स्ट्राइक रेट आ रहा है, मिनिमम क्वालिफायर मैंने नंबर ऑफ रन्स पे लगाया तो 184.6, 2 मैचेस, 120 runs, Abdullah Shafiq. I know we touched upon this very quickly. Your second best strike rate, Mohammad Haris ka 180 ka exact. But the thing is, the dude is averaging 60 striking at 184 versus someone like Haider who's played 5 matches, 100 runs, 109. अब ये ना एक conventional एक consensus बना हुआ है कि Haider Ali is a better T20 player than Abdullah Shafiq, right? But I think Abdullah Shafiq ने इस मैच में भी and generally इस सीजन में स्मॉल सैंपल साइज जो एक चीज शो की है ना, and we've seen this in his practice sessions जो ये करता है कि ये ना जो conventional cricketing shots होते हैं ना, वो खेलता है with a strong base and an attacking mindset and aerial जाने पर डर नहीं करता. So as a result, you know, he does not lose his shape, he stays side on, and we see a lot of players from the English cricket team, the English white ball team, do similar stuff, right? हम ये अक्सर कहते हैं कि यार हमारे पास modern day hitting, the red ball team. हाँ, exactly, red ball Brooke was doing that. And you know, versus someone like Haider Ali जो square up होता है और and he gets his leg out of the way and goes for an attacking shot. या फिर जो कन्वेंशनल यहाँ पे आपके पास कुछ कन्वेंशनल नेम्स भी आ रहे हैं जो T20 से एसोसिएटेड होते हैं. Even them, he's striking it above everyone else so far, and not to forget, both innings came against quality oppositions, right? अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे अब्दुल्ला की बताता चलूं, स्टेटिस्टिकली अब क्योंकि स्टैट्स ले आए हैं आसान भाई, तो इसका मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि अब्दुल्ला, हाउ मच अब्दुल्ला इम्प्रूव्स, बिकॉज दिस इज व्हाट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इन एनी प्लेयर, कि वो इम्प्रूव करता है या नहीं. Abdullah in 2022 basically played 11 innings, T20 innings, that is these domestic T20s की बात कर रहा हूँ, which includes like national T20s and PSL innings, right? और उसमें उसका जो स्ट्राइक रेट था वो 128 था उन 11 innings में, cumulative strike rate उसका 128 था, और there was only one instance जब उसका strike rate 150 से ऊपर गया था. And in 2023 उसने 2 इनिंग खेली, एक में he was striking, the first game he was striking at 182 और आज 187 पे मार रहा है वो. तो this clearly shows कि from 2022 he has completely changed, even though उसका 2022 का भी गेम जो था वो adequate था, it was very good, but he's gone this one step ahead and kind of like gone to that level जहां पे अब वो आता ही इस माइंडसेट से है कि मैंने जो है 150 या अबव के स्ट्राइक रेट पे T20 खेलना है. एंड आई थिंक दिस इज द रियल थिंग दैट सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम हिज कंपटीशन. एक, वो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है, व्हिच मींस ही डजंट गो अक्रॉस द लाइन या अगली हॉइक्स नहीं करता. सेकंड, उसका माइंडसेट एकदम T20 टाइप का हो गया है. तो इस पूरे चार्ट के अंदर आई थिंक cumulative runs और ये सारी चीजें, these kind of things actually are very interesting, but if you actually break down his data and see कि वो पहले कैसे खेल रहा था और अब कैसे खेल रहा है, तो you clearly see कि he's elevated his game. और स्कोरिंग शॉट्स भी चेंज हुए हैं, काफी चेंज हुए. आज जो वो इस तरह से बहुत चेंज हो गया, जिस तरह से वो गैप्स को पिक कर रहा था, दैट्स इनक्रेडिबल. एक चीज आई थिंक अब्दुल्ला शफीक ऑब्वियसली, हाँ शान भाई आप ऐड करो. आसान भाई आप ऐड करो. मैं सिर्फ ये कह रहा था वेरी क्विकली, एक और चीज जो आज के मैच में चेंज हुई है वो ये है कि फखर जमान जो है ना वो सेकंड लिस्ट पे आ गए. He's overtaken Rousseau for the cumulated runs, but with a very good strike rate as well. 172 is not bad whatsoever. But मुझे ये लग रहा है अगर आप देखें ना टॉप 3 के बाद जो फोर्थ बेस्ट है वो 180 है, फिर बाबर आजम, इमाद वसीम इज एट 180, बाबर आजम इज 178, फिर गैप कम है. मुझे ये लग रहा है with lesser games played, very soon you'll be seeing Abdullah Shafiq in the top 3 with a better strike rate than someone like Fakhar and possibly, you know, like Haris even. अगर ये ऐसे ही चलता रहा. And I think
he's out there to prove a point. अगर उसकी intention देखे ना, आते साथ ही एक तो balls लेता है just to get his eye in, वो भी middle करता है from the first ball go, and he wants to get rid of that stigma कि यार I'm not just a test player. That's the thing that I was. I also one thing, Sahfqat, I'll let you complete after this. एक चीज मैं हमेशा इस पूरी शीट के अंदर जो हमेशा चीज देखता हूँ, it's not strike rate, it's not runs, it's actually the number of sixes that up, जिसे कहते हैं batsman hits. क्योंकि when you actually see, वो जो एक आसिफ अली ने बोला था ना अभी recently, last year I think उसने जब वो ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहा था, बोला था कि मैं एशिया कप खेलने जा रहा था, बता आई प्रैक्टिस, मैं 150 छक्के की प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं 150 छक्के की प्रैक्टिस करूंगा तो मैं गेम में 3-4 या जितने भी छक्के मार सकूंगा. सो पीपल लाइक फखर, पीपल लाइक रुसो एंड who else is there, who's got 10 sixes over here? Is it Imad? I think it's Imad. It's Azam Khan. It's Yeah, Azam Khan, Imad Wasim, and TK बीच में वेड भी है शायद, सॉरी कॉल मनरो है दैट. तो ये सारे जो लोग हैं राइट, तो ये आपको 11-12 छक्के दे रहे हैं इस पूरे सीजन में अभी तक, विच शोज के दे आर द वंस हु आर. ठीक है, आप अगर 4 या 5 एरियल शॉट खेलोगे तो उसमें से शायद 2 छक्के होंगे आपके. ये एक जनरल एक कैलकुलेशन होती है कि आप इतने छक्के खेलोगे तो लाइक इतने आप एरियल शॉट मारोगे तो छक्के लगेंगे. तो ये कॉलम जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दिस शोज के बैट्समैन किस इंटेंट से खेल रहा है. क्योंकि अगर आप छक्के नहीं मार रहे हो तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर इंटेंट. इट इज व्हाट इट इज. अच्छा शफकत, यू वांटेड टू से समथिंग, तो या यू कैन गो अहेड. Yeah, on Abdullah Shafiq, that I think Hassan भाई ने इस पे पॉइंट बनाया था कि he is out there to prove a point this season, that he is not just a test player or an ODI player, या फिर कोई ऐसा player who is a little sluggish जो शुरू में takes a lot of time to get going, या थोड़ा सा हमने देखा था लास्ट ईयर भी थोड़ा सा वो हो जाता था, like फंस भी जाता था. But this year he's got that attitude कि I'm not your conventional test match player. I can play this kind of game as well. So आज just in order to do a little bit of research on him, I was looking at his social media accounts and how he has evolved as a person and all that. And he he has got this nickname of AB, and he thinks of himself as somebody who's different, who's out there to conquer the world. And just on that point, that he wants to change his perception. I think this is going to be the season that is going to help our think tanks realize that Abdullah Shafiq should be in all of your 3 squads, the test team, the T20 team and the ODI team. Right. अच्छा, very quickly, sorry Vikas, एक छोटा सा मैं point सिर्फ कहना चाहूँगा. I was just wondering this as well कि imagine the work ethic of Abdullah Shafiq, who is a person who has not played domestic season, और वो एकदम से आ जाता है in the mix and he starts topping the charts. फर्स्ट क्लास में भी, T20 नेशनल T20 जो वो पहला खेला था उसमें भी, एंड देन अभी करंट जो पिछला फर्स्ट क्लास सीजन गुजरा है वो भी बहुत उसका, ही वाज टॉपिंग द चार्ट्स टिल ही गॉट सिलेक्टेड फॉर द टीम. एंड देन जो उसने अपनी डेब्यू, जिस टूर्नामेंट में उसने डेब्यू T20 सेंचुरी की थी डोमेस्टिक, उसमें भी he must have had a great work ethic and some great coaches to come through to be able to do what he's doing. Yeah. इसका ब्रेक थ्रू हुआ था in 2014 when he started playing for Sialkot under 16s, along with, अगर आपने देखोगा इसके साथ सैफ बदर भी था, and then he worked his way, अच्छा under 16 में he worked his way up to the Pakistan under 19 team. 2015 में Pakistan under 19 were going to Sri Lanka for a youth test match series. Yeah. He played a test match alongside the likes of Shadab Khan and other guys जो 2016 की क्लास के थे, but unfortunately he couldn't make his way into the 2016 under 19 World Cup team. But he was still playing the district under 19s, the regional under 19 teams, and then and I think when the revamp happened in 2019, he was in the second 11, right? उसके बाद फिर वहां से वो escalate होके first 11 में आया, फिर पाकिस्तान टीम में. अच्छा, I think we need to touch base on one of the Lahore bowlers as well, Zaman Khan. हमने कल भी उसकी बात की थी, आज भी जो है उसकी हमें बात करनी चाहिए, because
शुरू के 4 ओवर में आई थिंक विकेट, शुरू के तीसरे ओवर तक विकेट नहीं गिरी थी, एंड देन जमान ने फिर वो स्लोअर वन कराई और फिर उसके बाद विकेट निकाली. So I think we should talk about him as well. And I just pulled up his numbers from like the last 2 years, and like incredible यार. उसकी स्ट्राइक रेट 17 की है 2022 में जो उसने पीएसएल खेला था, और उसका स्ट्राइक रेट 2023 का 18 का है, which means कि every game he is basically taking a wicket. He is basically taking a wicket every game. चाहे वो किसी के खिलाफ भी खेले वो एक विकेट जरूर लेगा. और उसकी इकोनॉमी जो है वो 8.5 से नीचे दोनों सीजन. तो ये लड़का जो है he needs to be in the radar for at least the T20 side, international side पाकिस्तान की, because I think he's a finished product T20s के लिए. So I want you to expand on this, because I think like we are missing out on good, जैसे कहते हैं ना, years of Zaman Khan right now. That's a great point, that we are missing out on the good years of a very good product, say of a very good resource. Zaman की again हमने कल भी बात की थी कि एक ऐसा बॉलर है जो पावर प्ले में तो बॉल करता है, लेकिन डेथ फेज में भी आपको बार बार दिखा चुका है कि वो एक बहुत अच्छा बॉलर है. आई थिंक जमान के साथ है एहसानुल्लाह या और बॉलर्स का एक छोटा सा इशू ये है कि आपकी जो बॉलिंग अटैक है स्पेशली वाइड बॉल में वो ऑलरेडी बहुत पैक्ड है. वहां शाहीन है, हारिस है, अब नसीम भी आ गया है, हसनैन बैठा हुआ है, दहानी को आप ट्रैवल करा. लेकिन आई थिंक अगर आप रोटेशन पॉलिसी अगेन जैसे कल बात की थी, रोटेशन पॉलिसी थोड़ी आप अपनाओ तो आप जमान एंड एहसानुल्लाह को इनिशियली आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो. एंड देन आई एम प्रीटी श्योर दोनों बॉलर ऐसे हैं जो एक दफा अगर टीम में आ जाएं तो अपनी जगह बना लेंगे. एंड देन यू विल हैव अ वेरी स्वीट हेडेक कह लो आप उसको, कि आप इतने बॉलर में से बाहर किसको बिठाओगे, जो कि आपको अक्सर अभी भी आ जाता है कि जब आपको कहीं 4 फास्ट बॉलर खिलाने की जगह ना मिल रही हो तो मोहम्मद वसीम को आपको बाहर ही बिठाना पड़ता है. उस बॉल रियली वेल इन ऑस्ट्रेलिया, अभी उसकी यॉर्कर वगैरह डेथ में अगर हम साउथ अफ्रीका वाला मैच स्पेशली याद करें तो उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी. सो आई थिंक जमान अगेन कह सकते हैं फिनिश प्रोडक्ट है, लेकिन पीएसएल इज द क्लोजेस्ट दैट वी हैव टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. वहां वो परफॉर्म कर रहा है, इंटरनेशनल में थोड़ा और हाई लेवल होगा, लेकिन हम उसको थोड़े कम मैचेस में, हल्के मैचेस में इंट्रोड्यूस, जैसे नीदरलैंड्स वगैरह से हमारे बीच में मैच हुए थे, वहां हम फुल स्ट्रेंथ खिला रहे थे, हमें नहीं खिलानी चाहिए थी ऐसे बॉलर. अच्छा मसला ये है जमान के साथ, जैसे दहानी वाज इवन ट्रैवलिंग, जमान हमें फिर पीएसएल में ही याद आता है, वापस नजर आता है, एंड वी काइंड ऑफ रियलाइज कि यार ये लड़का हमें क्यों नहीं टीम के करीब आ रहा. तो दैट्स वन प्रॉब्लम विद जमान कि वो बिल्कुल रेडार में भी नहीं आ रहा, हालांकि ही इज बीन डूइंग रियली वेल डे इन डे आउट. यार एक चीज, एंड ही शुड बी हियर. एक और चीज जो मुझे पॉइंट आउट करनी है यहाँ पे जमान के लिए, कि आई थिंक जमान इज वर्किंग वेरी वेल राइट नाउ बिकॉज ही इज प्लेइंग अंडर शाहीन हु इज बीइंग गाइडेड बाय वीजे. तो मतलब ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जमान की सक्सेस में, क्योंकि उसका जो कैप्टन है वो खुद फास्ट बॉलर है, और उसका जो फास्ट बॉलर So even the bowling lineup, having good bowling lineup also helps, because if the batsmen don't have anywhere to cut loose, पाकिस्तान इंटरनेशनल की भी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है यार. इट्स नॉट कि पाकिस्तान की हल्की है इंटरनेशनल की. हाँ ट्रू दैट, राइट. पर अच्छा एक चीज ये भी है कि अगर आपके पास इतनी लंबी बॉलिंग लाइनअप है, आपके पास इतने सारे बॉलर्स हैं, उनमें यू वुड लाइक एटलीस्ट समवन टू लाइक थोड़ा बहुत बैट थ्रो करे. जैसे इंग्लैंड में हम देखते हैं कि आर्चर कैन बैट अ बिट, वुड ने हमें खैर टेस्ट मैच में भी पिटाई कर दी हमारी, तो शाहीन थोड़ा बहुत बैट कर लेता है. हसन अली प्रॉब्ली, कुछ और नए बॉलर्स जो राइट नाउ उसको क्वालिटी में या पेस में ट्रम्प करते हैं, उसके बावजूद हसन अली सिलेक्शन में उनको अक्सर इसलिए ट्रम्प कर जाते हैं क्योंकि हसन अली बैटिंग कर लेता है, कि 8वें पे आप कहते हो कि यार हसन को खिला देते हैं, नीचे शाहीन, हारिस और प्रॉब्ली एक और कोई वो जो फास्ट बॉलर आ जाए. इंग्लैंड माइंडसेट जो है. हाँ, तो आपकी थोड़ी बैटिंग लंबी हो जाती है हसन को खिलाने से. हसन के बारे में बात करने के अलावा वी जनरली से कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग कंपैरेटिवली हल्की है, लेकिन इफ यू लुक एट द बॉलर्स दे प्ले, दे प्रीटी सॉलिड बॉलिंग लाइन है. उसमें भी दे हैव हसन अली है, शादाब खान योर टॉप स्पिनर, आपका टॉप स्पिनर है. दे हैड अबरार राइट नाउ. अबरार आपका हालांकि 2-3 मैच ही खेला, लेकिन टेस्ट आज मार पड़ी. अब वो अभी यंग है, आज जिशान जमीर को भी मार पड़ी है. एंड वेरी सरप्राइजिंगली
टॉम करन से लोग खुश नहीं थे, बट वन थिंग दैट आज दूसरी इनिंग में साबित हुई कि पिच का फैक्टर बहुत ज्यादा था, उसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। टॉम करन को विकेट्स इसलिए मिली क्योंकि उसने तकरीबन 60% से ज्यादा बॉलें पिच में पटकी, तो उसको विकेट भी मिली। आखिर में उसको आई थिंक राशिद खान ने एक छक्का मारा, लेकिन तो हाँ, लेकिन यार ओवरऑल बहुत मिडिल फेस में बहुत 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 जबरदस्त, बहुत जबरदस्त था। पर टॉम करन ने मिडिल फेस वगैरह में विकेट्स भी, 3 विकेट्स उसने इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली हैं। अच्छी बॉलिंग वो कर रहा था, इसीलिए भी क्योंकि उसने अंडरस्टैंड किया कि इसको कैसी बॉलिंग इस पिच पे करनी चाहिए। सो कंपेयर टू अदर्स उसको शुरू में मार एटलीस्ट कम पड़ी। अच्छा शफकत, आई एम गोना कम टू यू बिकॉज आई थिंक दिस इज यू वुड हैव मोर कहते हैं ना लीडिंग एंड ट्रेलिंग नॉलेज ऑफ दिस इशू। पाकिस्तान इज नाउ कमिंग इनटू दिस जिसे कहते हैं सिचुएशन जहां पे हमारे पास हर रोल के रिसोर्स ज्यादा हो जा रहा है, विच मीन्स कि बैट्समैन कुछ स्पॉट के एक ही स्पॉट पे कोई 4-5 बैट्समैन आ रहे हैं, जैसे ओपनिंग स्लॉट का हमारा एक प्रॉब्लम चल रहा है। इसी तरह फास्ट बॉलर में किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है कि फास्ट बॉलर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो तुमने 1-2 दिन पहले एक चीज बोली थी एंड आई थिंक वी डिडंट एक्सपैंड ऑन इट, बट आई वांट यू टू लाइक एक्सपैंड ऑन इट टुडे कि कैन दिस प्रॉब्लम बी नॉट रिजॉल्व बट एटलीस्ट यूटिलाइज्ड इन अ वे कि हमें लॉन्ग टर्म फायदा हो बाय इनकॉर्पोरेटिंग ए टीम्स ऑफ एवरी फॉर्मेट, ताकि हम जो है हमारे जो रिसोर्सेस, क्योंकि अब क्या है हमारी पाइपलाइन बहुत छोटी है और उसमें रिसोर्स बहुत ज्यादा आ रहा है, राइट? तो अब वो 90s में जैसे हमारा एक प्रॉब्लम हो गया था कि बिकॉज वसीम एंड वकार एंड शोएब वर इन द टीम, सो पीपल वेरी गुड बॉलर्स लाइक मोहम्मद अकरम, बॉलर्स लाइक आकिब जावेद हु वाज प्रीटी डिसेंट मतलब इन हिज टाइम, राइट, एंड बॉलर्स लाइक जाहिद couldn't make it because you know टीम के अंदर इतनी जगह नहीं थी। तो can we talk about A teams a bit, then I'll go to Hassan bhai and then we'll do hashtags. So very quickly if you can give your thoughts on it. Having the A team is very important, irrespective of the resources that you have, the lesser number or the greater number. One of the examples that I would quote you is that BCCI became really big on having A teams and especially under 19 teams. उन्होंने अपना A और under 19 setup gave to I think Rahul Dravid, और ये किया इंडिया ने when विराट कोहली took over the reins around 2015-16, तो इंडिया ने रेगुलरली सेना टूर्स करने स्टार्ट किए in context of their FTP, right? अगर उनको पता था कि इंडिया आर गोइंग टू प्ले 2 बॉर्डर गवास्कर सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया in 2018 and then in 2020 and 2021, तो they were regularly sending Prithvi Shaws, Mohammad Siraj, you name anyone who performed there, right? They were regularly sending those players to Australia, to South Africa. जहां पे भी उनकी टेस्ट सीरीज होती थी उससे पहले वो अपनी ए टीम भेज दिया करते थे, और साथ उनकी जो एनसीए थी which is in Bengaluru, that was in contact with the junior selection committee कि which players need game time and they are close to playing for India, so they should be going on the A tours. एक बात ये होगी। उसके बाद for Pakistan it is very important, एक तो आप अपना FTP देखें, right? उसके बाद you will have to adjust these players somewhere. आपकी साल में एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे आप जितनी भी कोशिश कर लो ना, शाहीन जुलाई में जाएगा और नवंबर में आएगा, ठीक है, हारिस आपका दिसंबर में जाएगा और फिर फरवरी में आएगा, ठीक है। इस तरह से स्पेशली आपके जो फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज हैं वो आते जाते रहेंगे। यू हैव टू मेक श्योर कि इनमें से आपके जो प्लेयर हैं, फॉर एग्जांपल इसान उल्लाह, जमान खान, मोहम्मद हसनैन and somebody like you can say somebody like Mubassir and Ibrar, इन 5 लोगों का कितना अच्छा बॉलिंग अटैक बनता है which is all round. अगर for example this A team is playing a 4-day game, a 3-day game and that is followed by a few list games and then a few T20 games, तो ये तीनों का आपके पास एटलीस्ट एक वो सेट तो मिल जाएगा ना कि ये प्लेयर्स इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। एंड आई थिंक बीसीबी मस्ट मेक श्योर कि हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के टूर्स लाजमी करें। यार ये जो इंडिया ने अभी ये जो आप 2015 में या 14 में उन्होंने ये जो पॉलिसी बनाई थी कि हम A टूर्स करेंगे, दैट टुक 5, मतलब उसका जो डिविडेंड आया वो 5 साल बाद आया when their C team was playing Australia in an away tour, right? उनकी पूरी जो विराट कोहली भी चला गया था और उनकी पूरी B टीम वो हो गई थी, इंजर्ड हो गई थी, और उन्होंने C टीम खिलाई and they won that series, away series उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया जस्ट बिकॉज उन्होंने वो 5 साल उनकी इन्वेस्टमेंट थी A टूर्स के अंदर, जिसकी वजह से जब उन्होंने अपने प्लेयर्स को इंडक्ट किया उस सिचुएशन के अंदर तो दे वर कंप्लीटली एट होम, दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। वॉशिंगटन
वॉशिंगटन सुंदर जो था, जिसने जो सुंदर उसने जो इनिंग्स खेली वो यार, कमिंस को छक्का मारे यार, छक्का मारा था उधर डीप मिड विकेट के ऊपर से, और मतलब मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, एंड I couldn't believe my eyes. मतलब हम the last time that we actually did not lose a game in Australia, it was 1996. I mean, I was just एग्जैक्टली writing this on. एग्जैक्टली। I was अच्छा just इसी writing सीरीज this आधी टीम इसी पैदल सीरीज निकली में थी। इसी सीरीज में दे गॉट आउट फॉर 36, ऑल आउट इसी फॉर 36 इसी सीरीज में इसी they got out सीरीज। for 36. या It या हाँ या वही ना, और मतलब they had so much self belief यार के, and they were there to do a job. No, no, वो मैं एग्जैक्टली मैं चीज बोलूंगा यहाँ पे जो बहुत लोगों को बहुत बुरी लगेगी, बट देर वो 36 में आउट हो गए, देर वॉज नो होलसमनेस, नो हंसी मजाक, नथिंग, दे वेंट देयर टू डू अ जॉब, दे डिड दैट जॉब, और फिर आगे उन्होंने सेलिब्रेट किया जो भी किया, एंड जो दैट भी इज हाउ गिवन। इट इज। इसमें अच्छा एक एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट और ऐड करूंगा, सॉरी गाइस आई सोहेब, हैव टू गो टू हाँ हसन भाई, सर आई हैव टू गो टू हसन भाई, जस्ट एंड हाँ हाँ चलो चलो शफकत बोलो आप। England have really sorry. England Lions in their proper, वो उनके एफटीपी में आता है। England Lions लाजमी विंटर टूर करेंगे, लाजमी समर में खेलेंगे। And I was looking at Harry Brooks numbers के फर्स्ट क्लास में, he's faced around 6 to 7,000 deliveries and he is 24 years old. And Azam Khan is also somebody like Azam Khan, और चले अब्दुल्ला शफीक तो अच्छा कर रहा है, somebody who's 24 in Pakistan is a batsman. अगर उसने 24 साल की उम्र में 7,000 गेंदें खेल ली हैं, तो सही हमारा प्लेयर कहाँ जाएगा, और हैरी ब्रूक क्या कर रहा है? एग्जैक्टली। ये अच्छा हसन इसमें ना भाई, इसमें हसन भाई, हाँ एक I सॉरी wanted to मैं touch थोड़ा सा ना base on. Okay, okay, या okay, okay. Go ahead. मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ए टीम के ऊपर जो अभी हमने बात की ना 8 ओवर्स के ऊपर, उस पर आई जस्ट लाइक टू एक्सपैंड अपॉन अ बिट कि एक एंगल ये भी होता है कि जो आपके प्लेयर्स होते हैं ना, जो आप कंसिडर करते हैं आर रियली गुड एंड दे कुड बी योर बैकअप, राइट, वो मोस्टली आपकी डोमेस्टिक सर्किट से आते हैं एंड दे आर प्लेइंग रन्स अगेंस्ट अ सर्टेन टाइप ऑफ इन सर्टेन टाइप ऑफ कंडीशंस वर्सेस सर्टेन टाइप ऑफ प्लेयर्स, एंड हेंस दे आर डूइंग गुड। डोमेस्टिक में तो वो अच्छा कर रहे होते हैं। मसला हमारे साथ हमेशा ये होता है कि यार अक्सर those kind of performances don't translate into the international arena, and we've had multiple such instances जहाँ पे प्लेयर डोमेस्टिक में तो बहुत अच्छा करता है मगर इंटरनेशनल पे आके फ्लॉप हो जाता है। उसकी एक रीजन ये है कि एकदम से अगर आप टीम में ले आते हैं ना, एलियन कंडीशंस, एलियन टाइप ऑफ प्लेयर्स उनके लिए होते हैं, and there is no stepping stone whatsoever to have that transition. You know, someone like Khurram Manzoor, for example. Khurram Manzoor, crazy amount of runs kiye domestic mein, but he could not cement that kind of spot in the international circuit. And it's not about the ability, it's more of कि आप एक ही टाइप ऑफ प्लेयर्स को खेल खेल के आपको वो आदत हो जाती है उन्हीं कंडीशंस में। तो जब आप एकदम से समवेयर लाइक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाओगे तो ये आपको यार इस तरह की तो मैंने टाइप ऑफ शॉट्स कभी अटेम्प्ट ही नहीं की, कोई इस टाइप की डिलीवरीज में कभी फेस नहीं की। यार आपका बाबर शदाब इंग्लैंड गए थे 2015-16 में, तभी 17 में आप जीते हो। I was coming to that. Babar Azam, 1 year before his international debut, played for He the was A in team England. और उसने सेंचुरी की थी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आप सबको याद होगा। Yep. उससे या होता क्या है कि यार बिलीवेबिलिटी आ जाती है मैनेजमेंट के पास भी कि यार ये प्लेयर इंटरनेशनल सर्किट में परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम अक्सर ये देखते हैं कि व्हेन वी सिलेक्ट अ न्यू यंगस्टर ना, तो जो एक इनिशियल आप कह लें बैकलैश आता है ना, जो थोड़ा सा क्लीशे बन चुका है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस में, वो ये बैकलैश होता है कि यार इसने तो इनफ डोमेस्टिक नहीं खेला हुआ या इसने इनफ सीजंस नहीं खेले हुए। इट्स जस्ट दैट कि हिस्टोरिकली जब ए टीम्स भी नहीं होती थी ना, तो वी यूज्ड टू एटलीस्ट सेंड आवर प्लेयर्स द लाइक्स ऑफ वसीम अकरम, वकार, जहीर अब्बास, ये लोग जाके काउंटी शाउंटी खेल लेते थे, तो वो इक्विवेलेंट होता था उस जमाने में 8 ओवर्स के, बिकॉज काउंटी का लेवल उस जमाने में इस तरह का होता था कि people from all over the world would come and play and there'd be shit tons of matches, right? वो अब क्योंकि नहीं हो रहा with the emergence of T20 या बहुत limited capacity में हो रहा है, so hence 8 overs become all that more important, क्योंकि आप ये अभी तो currently अगर देखा जाए हम अपने FTP में struggle ये इस चीज पे कर रहे हैं कि we schedule a full-fledged series at the same number of matches as some of the big three, for example. And if we're struggling with that, तो 8 tours naturally come in second priority, क्योंकि विंडो नहीं बचती, और जब विंडो बचती है तो वो किसी और के आपस में 8 टीम्स की सेटिंग हुई भी होती है। Yeah, the thing is कि we need to separate A team and international cricket completely. Like अगर एक वर्ल्ड कप भी हो रहा है ना, हाँ, पैरेलल में कराएं बिल्कुल।
पैरेलल में have कराओ आप वो। इट्स जस्ट लाइक कि यार वो यार आप एक बंदे को आमिर साइन कर दो, आमिर वो आप एक बंदे को एनबीसी साइन करो। जो वो होता है क्या कहते हैं, एक तो एनबीए होता है एंड देन देयर इज कॉलेज बास्केटबॉल। और कॉलेज बास्केटबॉल जो है वो मार्च मैडनेस में हो रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो है उनको नीचे एक फिल्टर ड्राफ्ट रख, पिक्स, न्यू सीजन ड्राफ्ट पिक्स जो होती हैं वो कॉलेज बास्केटबॉल से ही होती हैं, कॉलेज so बास्केटबॉल से होती है। that's तो also बेसिकली just या अच्छा बेसिकली जो आपकी हाँ वकास भाई कंप्लीट करो। मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली ए टीम जो है वो वो हसामा की बात बड़ी अच्छी है कि वो एक बीच में एक लेवल है जो हम मिस कर देते हैं कंप्लीटली, जिसकी वजह से आइदर या तो एथलीट जो आप ऊपर भेज रहे होते हो उसका कैरियर खत्म हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कहते हो भाई ये तो इंटरनेशनल के लिए फिट ही नहीं है, राइट। और सेकेंडली फिर आप जब भेजते हो और आपको नहीं मिलता कोई इस तरह का प्लेयर, तो आप कहते हो हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो बेसिकली वो एक फिल्टर आ जाता है बीच में जो अच्छे प्लेयरों को ऊपर जाने देता है और जो अच्छे नहीं होते हैं उनको वापस नीचे भेजता है कि अपना स्किल बढ़ा के आओ। तो दैट्स अ वेरी वेरी जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट stepping stone, as Hassan bhai said. So bhai, you can carry on with your point. Then we'll discuss the table and then we'll go for hashtags. अच्छा ये शफकत भाई और हसान भाई ने बड़ी जबरदस्त ऑब्वियसली इस पे ऐड किया कि रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग ए टूर्स तो होनी ही चाहिए, बिकॉज अगेन आपके प्लेयर बाहर जाता है उसको डिफरेंट कंडीशंस मिलती है, डिफरेंट जो है वो एक्सपीरियंस उसको मिलता है। अभी अगर आप जैसे अब मैं प्रॉब्ली काउंटी के अलग अलग फॉर्मेट को लेके प्रॉब्ली 10 प्लेयर शफकत हमारे जा रहे हैं पाकिस्तान के जो फीचर होंगे इंग्लैंड में। 10 से 12 हाँ प्लेयर बिल्कुल है, 10 से 12 प्लेयर है। हाँ दैट्स अ गुड थिंग, दैट इज अ ग्रेट थिंग। पर एक चीज जो उसके प्रॉब्ली नॉट लाइक बिल्कुल इक्विवेलेंट बट इट्स समवे क्लोज इज के यू कैन सेंड प्लेयर्स जो अब पूरी दुनिया में लीग्स हो रही हैं, तो पूरी लाइक यू कैन सेंड योर प्लेयर्स टू फीचर इन दोज लीग्स। लेकिन यहाँ ये है कि अभी आजम गया हुआ था तो टीवी पे बैठ के मोइन खान के बराबर बैठ के सिकंदर वक्त उसके मुंह पे कह रहा था कि जी यहाँ ये पॉइंट आ जाता है ना कि जी डोमेस्टिक को इज्जत नहीं दे रहे, अपनी लीग्स खेलनी यार चाहिए, अपने मैच खेलने, जो सिकंदर पैसा कमाने चले जाते हैं। सो दैट भाई वो इट्स देखिए नॉट इंग्लैंड ने जस्ट कितने हिम। प्लेयर्स को बाहर निकाला हुआ हाँ था। एग्जैक्टली यार मैं एग्जैक्टली दैट्स द समर के पॉइंट, दैट्स अंदर द पॉइंट। अराउंड 30-35 यार players भी were out. You I'm gonna have say this out loud. I'm gonna say this out loud. And अगर किसी को बुरा लगता है लगे, I don't give a shit, right? पाकिस्तान के अंदर 99 में से शायद 95% of the people who are associated with cricket do not fucking understand. Excuse my language. yes Do not yes yes understand the game, right? So They exactly this is don't the know exactly the problem. ground realities. They don't really know हाँ the ट्रू ground realities. ट्रू एंड दीज प्लेयर्स यार आप नसीम शाह को ले लो ना। नसीम शाह पीएसएल खेल रहा था लास्ट आई थिंक 2021 में लगा लो उसको, तो ही वाज प्लेइंग फॉर क्वाइट ग्लैडिएटर्स और वहां उसको 2019 में ठीक भी ठाक squad में। हाँ मतलब शुरू से मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। 2021 में उसको ठीक ठाक मार पड़ रही थी, वन स्टेन वाज आल्सो विद देयर टीम ना, जब उनके हर प्लेयर को मार पड़ रही थी। तो नसीम शाह ये 2022 की बात है, लाइक कंफ्यूज विद द ईयर। पर उसके थोड़े महीने बाद नसीम शाह गोज टू सीपीएल एंड स्टार्ट्स परफॉर्मिंग देयर, एंड वहां से फिर वो कॉन्फिडेंस भी उसको मिला, वहां से उसकी परफॉर्मेंस आई एंड देन ही हैजंट लुक्ड बैक। नसीम शाह CPL इज जीती अ थी कंप्लीटली उसने। हाँ हाँ इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉलर। जो आपको जो वहां एक्सपोजर मिलता है, आप जिस टाइप के प्लेयर्स जिस टाइप के कोचेस के अंडर खेलते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वी शुड सेंड मोर एंड मोर प्लेयर्स टू प्ले इन द लीग। सेकंड पॉइंट जो इससे हटके है वो ये है कि गोइंग बैक टू अ पॉइंट वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट बॉलर्स, आई थिंक बॉलर्स को एहसानुल्लाह या और भी जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे, उनको लाइक अपने इसमें ये भी होता है कि आपका मेजर स्किल थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन एक एडिशनल अगर आप स्किल उसके साथ डेवलप कर ले तो आपके लिए सिलेक्शन आसान हो जाती है। तो ये आपके लिए भी अच्छा है और टीम के लिए भी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल इफ योर बॉलर लाइक स्टार्ट्स बैटिंग अ बिट, जैसे यूनुस खान ने फवाद आलम को एक सजेस्ट किया था व्हेन ही वाजंट एबल टू ब्रेक इनटू द टेस्ट टीम। यूनुस खान सेड टू हिम कि आप ओपनिंग करो, आप ओपनिंग में तवज्जो दो, गो टू डोमेस्टिक क्रिकेट एंड स्टार्ट ओपनिंग देयर। तो शान ने भी किया कि उसने मिडिल ऑर्डर में अपनी बैटिंग करनी शुरू की। So you change your circumstances, you add a bit of skills. तो अगर वो कर लें तो कुछ प्लेयर्स जिनकी टीम में जगह नहीं बन पा रही, आइडेंटिफाई करें कि टीम को किस चीज की जरूरत है, उस स्किल पे प्रॉब्ली अगर ऐड कर लें तो उनकी सिलेक्शन में आसानी होगी। On a lighter note, ये जो अभी सुहेब ने बात की कि यूनुस खान ने शान को समझाया, तो यूनुस खान फवाद को हिमसेल्फ सॉरी फवाद को समझाया, सॉरी आई अपोलोजाइज। तो यूनुस खान हिमसेल्फ in 2016 was dancing like a ballerina in the English tour जो हम पर इस बार स्कोर पर डबल हाँ, सेंचुरी मारी फिर
डबल सेंचुरी मारी अगले मैच, लेकिन अगले डबल मैच में। सेंचुरी मारी अगले मैच, आखिरी मैच में मारी थी, ओवल में मारी थी. हाँ But what people, I think most people don't know is that Yunus actually called राउंड Azharuddin. रॉबिन, Godfather, अजहरुद्दीन, yeah, no, Azharuddin. अजहरुद्दीन, Azharuddin. हाँ Godfather अजरुद्दीन को उन्होंने कॉल की थी, वो भी दुबई में. तो हाँ। उसके बाद जो है वहां से उन्होंने फिर कोई एडवाइस दी कि आप जो है क्रीज के अंदर जाके खेलें, क्योंकि आपके Azharuddin basically, if I remember correctly, Azharuddin called Yunus bhai and he said you're moving too much on the crease. You have टू to मच ऑन द like क्रीज. थोड़ी Replace steady him रहो, with जो कि good सबने match नोट किया था. Yeah. हाँ यार और वो भी उसकी बड़ा that was the समझ debut नहीं test आया of Iftikhar Ahmed. हाँ यार यार इफ्तिखार एक चीज है यहाँ पे. यार वो ओके स्टॉप एवरीथिंग, एक मिनट. वो इफ्तिखार समझ नहीं आया था ना, वो समझ नहीं आया यार था. यार अच्छा वो इफ्तिखार SMG जो है ना, कनेक्शन था. अहमद नकवी ने एक बात कही थी एक पॉडकास्ट पे, एंड आई एम गोना रिपीट दैट राइट हियर. राइट, इफ्तिखार बेसिकली इज द इंतखाब आलम गोइंग फॉरवर्ड, लाइक फॉर द नेक्स्ट 50 years, राइट. जैसे इंतखाब आलम अभी हमारे साथ, हम बचपन से, मैं पैदा होके ही देख रहा हूँ इंतखाब आलम को कि ही इज एसोसिएटेड विद द बुट. इज ही अराउंड टिल नाउ? आई डोंट नो. आई मीन अभी तो शायद नहीं है, लेकिन 69 में काउंटी खेल रहा था, 92 में पाकिस्तान टीम के साथ कोच था, फिर 2009 में भी था, 2009 में भी कोच था, नहीं था. अच्छा मजे की बात ये है कि we won 2 World Cups and इंतखाब आलम was with us. दोनों दफा इंतखाब आलम was there in the dressing room. So yeah, the guy made it work. I mean, whatever he does, it works. Whatever he does. It works. It's him against Moin Khan's 2015. well, it's a done case था. ये 2015 जरूर आएगा ना हर एपिसोड में. ये इसका फीचर जरूरी है. कहीं तो मैं कोयटा का गुस्सा कहीं तो निकालूंगा मैं. 2015 was amazing. यार वो वर्ल्ड कप जीत जाते ना, it would have been the most legendary World Cup in Pakistan history. 92 would pale in comparison जो यार, अगर 2015 निकाल लेते हैं. That would have मजे की taken बात ये है. Misbah. That would have taken Misbah हाँ. right into the skies, man. मजे की बात ये है कि somehow 2007 के बाद ना, somehow we would 2007 जो T20 हम फाइनल खेले और हारे, उसके बाद किसी भी वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ करके हम क्वार्टर में, सेमी, मतलब 2010 वाला जो हम सेमी खेले ऑस्ट्रेलिया, जो अजमल को छक्के पड़े थे, वो उसमें हम सेमी में कैसे पहुंचे? आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. और अब वो जीतने वाले हैं, लाइक हंसी पुल्ड ऑफ अ मिरेकल. तब वो अब जीते वाले थे, वी कुड हैव बीन इन द फाइनल. एंड अभी लगा 2022 वर्ल्ड कप, मतलब हम जिम्बाब्वे से हार गए. हमारी विन probably reaching the semi-final के chances जो क्रिकविज डेटा के मुताबिक below 6% थे, and at one point I think below 2% थे, and इसके बावजूद we played the final. मतलब अमेजिंग टीम ना, हम लोग क्या करते थे किसी को समझ नहीं आया. ये मैं एक बात बताऊं, 2015 में जब हम जा रहे थे ना, जब हम वर्ल्ड कप के लिए खेलने जा रहे थे, तो somebody लॉरेंस बूथ था या पता नहीं कौन था, उसने स्टैट लगाई थी कि पाकिस्तान ने कोई 27 या 30 मैचेस में चेस करते हुए जो है सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, जिसमें से एक जिम्बाब्वे के खिलाफ था और एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ था. और हमारी ऑलमाइटी बॉटल किया था. या और उसके बाद फिर उससे एक साल पहले वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का गेम हुआ था, जिसमें उन्होंने 400 चढ़ाए थे और उन्होंने 400 चेस कर लिए थे. राइट, तो पीपल वर लाइक कि यार पाकिस्तान का कोई सीन नहीं है. राइट, सबने हाथ पैर छोड़ दिए थे. ऊपर से फिर हम जो है नासिर जमशेद को ले गए थे, तो पीपल वर लाइक कि यार कुछ हो ही नहीं सकता. हफीज की रिप्लेसमेंट कुछ हो ही नहीं सकता फॉर सम वियर्ड रीजन. और हम शुरू के कुछ मैच हारे भी थे. उसके बाद सोहेब खान को और उसके बाद राहत अली को. वकास यासिर शाह was a spinner, one of the spinners, लेकिन मैच I have a friend who lives abroad and उसने ना 2022 वर्ल्ड कप में ना, जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा ना, तो उसने बेट लगाई ऑन पाकिस्तान विनिंग द वर्ल्ड कप £100. ठीक है, and if Pakistan were to win that World Cup, he £100 के against उसको £3,600 मिलने थे, which is like around 1 to 36
जो बैटिंग डायनामिक्स में इससे ज्यादा क्रेजी हो नहीं सकता odds, मैक्सिमम पॉसिबल odds थे। यार और जब चैंपियंस ट्रॉफी जो हम सेमीफाइनल जीते में पहुंचा ना, तो जब पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा ना, तो वो जो ऐप थी उसकी बैटिंग वाली, उसने उसको कहा तुम कैश आउट कर लो, उसने कहा नहीं फाइनल जीतेंगे। जब फाइनल में पहुंचा उसने कहा कैश आउट कर लो, 3000 पाउंड ले लो, उसने कहा नहीं पाकिस्तान जीतेगा। सो दिस अच्छा इज व्हाई बैटिंग इज हराम, ladies and gentlemen. भाई वी आर नॉट, भाई देखो यहाँ पे वी आर नॉट एंडोर्सिंग एनीथिंग, इट्स जस्ट अ स्टोरी। तो यहाँ पे पिच 2000 शॉट्स लेके हम दो नीचे मुड़ पड़ गए। 2015 में आई रिमेम्बर Not हमारा endorsing. वेस्ट इंडीज से मैच न्यूजीलैंड में था एंड यहाँ रात के 3 बजे था। एंड पहले वो वेस्ट इंडीज में हमारी पिटाई करी, पहले हमने वो देखी और उसके बाद हमने 1 रन पे 4 आउट हो गए थे, वो देखे। एंड मजे की बात ये कि अगेंस्ट इंडिया वी प्लेड, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमें यासिर को खिलाना चाहिए था एंड हमने उसको वहां बिठा दिया था, प्रॉब्ली हमारे वहां काम आता। यार हमें पर शुरू से सरफराज को खिलाना चाहिए था। उस वक्त हाँ ट्रू सरफराज की ट्रू रेड हॉट फॉर्म थी। और हम ये वकार यूनिस अभी जो है ना, मुझे गुस्सा पता है किस बात पे आता है, ये अभी सारे जो हैं जाके कमेंट्री में बैठ के भाषण दे रहे होते हैं, राइट, और बता रहे होते हैं क्रिकेट ऐसी खेली जाती है। लेकिन मसला ये है कि आज जो जो बेसिकली जो पाकिस्तान फैंस का एक वो है ना, मेजोरिटी जो है वो काफी यंग फैंस होते हैं। और वो मतलब या तो किसी 2017 पे जब हम जीते थे उसके बाद एक इन्फ्लक्स आया था फैंस का, राइट, तो उनको इनकी ये सारी हरकतें नहीं पता कि इन्होंने किस तरह पाकिस्तान के साथ अच्छा कैसे इनको नहीं पता। मजे की बात 11 के एक वर्ल्ड कप में वकार यूनिस था, 15 के वर्ल्ड कप में वकार यूनिस था, 16 की हाँ यार वकार हाँ यूनिस 16 में भी 2006 से है कहीं पे, वो आसिफ का हाँ बॉलिंग कोच था ये जब। बॉलिंग कोच था एग्जैक्टली। अच्छा एक और चीज उमर और अकमल एक को वकार यूनिस कह रहे हैं वेस्ट इंडीज में कि तुम कीपिंग नहीं करोगे तो मैं देखता हूं तुम कैसे खेलते हो। दैट वाज द उमर अकमल दैट वाज प्लेइंग ऑल 3 फॉर्मेट्स उस टाइम पे। यार अच्छा वही ना एक चीज और भी, देयर इज जूनियर केम ऑन एंड ही सेड कि हाँ वकार रमीज यूनिस एग्जैक्टली हमें बातें एग्जैक्टली। करता था जिम्बाब्वे के टूर पे, हम तो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके गए थे ना। एंड वकार यूनिस यूज्ड टू बी अ वेरी मूडी कोच। अच्छा देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जिन्होंने बाद में आके शिकायत करी है वकार यूनिस के एटीट्यूड की। उसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हो कि यार प्रॉब्ली वो खुद भी बड़े प्लेयर मानते हैं अपने आप को, थोड़ा इगोइस्टिक हो सकते हैं, इसलिए कोच से इशू हो, जिसमें शाहिद अफरीदी है, उमर अकमल है, शहजाद है, अब्दुल रज्जाक है, मोहम्मद यूसुफ है। हाँ लेकिन जब उस लिस्ट हाँ के अंदर हाँ बिल्कुल, लेकिन जब उस लिस्ट में अब्दुल रहमान और रमीज राजा जूनियर जैसे लोग आ जाते हैं ना, जिनको वकार यूनिस का रैप फील करना पड़ा, तो फिर आपको लगता है कि यार शायद मसला एक साइड है, क्योंकि अगर 8-9 लोग ये शिकायत कर रहे हैं अलग अलग फेजेस में, तो फिर शायद मसला एक जगह से आ रहा है। दूसरी चीज ये 2015 का जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो समवन आस्क्ड वकार यूनिस अबाउट अ बैकअप ओपनर, क्यों हम 2 ओपनर्स के साथ गए थे, देयर वाज अहमद शहजाद एंड नासिर जमशेद। तो व्हाट वकार यूनिस सेड एट दैट टाइम, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई कांट फाइंड द लिंक, बहुत पुराना हो गया, if I remember correctly, वकार said that we have another opener in सरफराज, जो कि उस वक्त आई थिंक हमारे यूए में एक आध मैच में उसने ओपन भी किया था, एक आध 50 शायद T20 में मारी थी, क्या था, लेकिन सरफराज ऑफ ओपनिंग ऑस्ट्रेलिया कैपेसिटी के वही है। आई थिंक हाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 में हाँ क्या था जब सॉल्टनर को स्वीप पे छक्का मारा था। हाँ 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 हाँ। बट देन जब वर्ल्ड कप के बीच में भी हमने देखा कि नासिर जमशेद बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, देन क्वेश्चंस अरोज अबाउट सरफराज कि भाई आप उसको क्यों नहीं खिला रहे, जब वो बैठा हुआ है, इन फॉर्म भी था, ही शुड हैव स्टार्टेड द गेम वैसे भी ना। तो वकार सेड के इन पिचेस पे हमें नहीं लगता कि सरफराज की टेक्निक जो है वो सूटेबल है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट प्लेइंग हिम। तो अगर टेक्निक सूटेबल नहीं थी तो वो ऑल्टरनेट जो है वो ऑल्टरनेट यार ओपनर की उसने तरफ, एंड टेक्निकली ही वाज योर फर्स्ट चॉइस, कीपर होना चाहिए। आई थिंक वहां बैलेंस जो बिगड़ा ना, बैलेंस बिगड़ा था यूनिस खान की सिलेक्शन से, जो 2015 में हमने एंड में सेलेक्ट किया था यूनिस को, उसको टीम में कैटर करने से। उसने रोना, हाँ उसने रोना वही शुरू कर दिया था टीवी पे ये आके कि भाई मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हो, ये क्या बदतमीजी है। तो बहुत सारे ऐसे यार we've gone on a really bad So since we're on the topic of वकार यूनिस, I know थोड़ा सा ना इस बात का मजाक उड़ाया जाता है, but जो एक दफा the one time that Wasim Akram was involved with the team in a little bit of capacity, वो था जब इसने एक छोटा सा कैंप कराया था 2013 में, और उसके बाद पाकिस्तान बॉलिंग कराने गई to India versus India गया था। And we saw what Junaid Khan and Mohammad Irfan did. Junaid Khan तो
पता नहीं एक नई चीज नजर आया आफ्टर स्पेंडिंग लाइक a month or so with Wasim Akram. I know वो उसका एक क्लीशे मजाक बना हुआ है जो जिसमें वो भाई प्रोड्यूसर ना सबको मार देगा जल्दी लाइक बहुत लंबा हो गया है। अच्छा बहुत टाइम एक पॉइंट लास्ट ऑन वसीम अकरम ना 2016 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कोलकाता में हुआ था 2016 का जो T20 मैच था आई थिंक और उस मैच से पहले हाँ उस मैच से हाँ उस मैच से पहले बारिश हो गई थी एंड जनरल थिंकिंग ये है कि ओवरकास्ट कंडीशंस बारिश वारिश तो बॉल थोड़ा स्विंग होगा तो हमने 4 पेसर खिला दिए आई थिंक हसान ने बात शेयर की थी हसान चीमा ने ऑन अ स्पेस के पाकिस्तान टीम को ये बात कन्वे की गई थी प्रॉब्ली वसीम अकरम की तरफ से दैट यू शुड प्ले स्पिनर्स अगर कोलकाता में इस तरह का कोई सीन होता है तो वहां बहुत बड़ा टर्न मिलेगा एंड इंडिया वेंट विद स्पिनर्स उनको इतना बड़ा टर्न मिल रहा था और हमारी हाँ इतना बड़ा टर्न कर रहा है हमें लाइक बहुत लेट रियलाइज हुआ कि हम last point with then we do predictions and the table very quickly for hashtags. यार इसमें एक बात है सिर्फ 16 में हम साउथ अफ्रीका से नहीं खेले वरना साउथ अफ्रीका जहां भी वर्ल्ड टूर्नामेंट में हमें मुश्किल आई है ना साउथ अफ्रीका सेव्ड अस 2009 2012 2015 2017 भी 2017 चैंपियंस ट्रॉफी यार this is another 2000 guys 2016 is another show that's a whole other show let's wind it up अच्छा guys right we'll do predictions and discuss the table very quickly मुझे 1 मिनट के अंदर ही completed चाहिए Lahore Qalandars sits at the top 5 played 4 win 8 points 1.47 positive 1.47 इनका net run rate है मुल्तान सुल्तान 6 played 4 win 8 points 0.844 then Islamabad United their net run rate takes a serious hit negative 0.334 but 6 points और Karachi Kings 4 points at number 4 0.862 Zalmi is negative 1.132 with 4 points and Quetta obviously 2 points with negative 1977 so table जो है वो basically depicts के मुल्तान and Lahore are the top teams very strong very stable winning almost all their games एक दो glitches बीच में so the race is between for the top 4 is now completely between Islamabad Karachi Peshawar and Quetta so इसमें से 2 जाएंगी कोई I think it will be Zalmi शायद चला जाएगा sorry Zalmi नहीं इस्लामाबाद चला जाएगा and it will be a toss up between Zalmi and Karachi और वो कल का मैच भी है by the way Karachi okay all right Shavkat who are your last the last 2 इन 4 में से I would say कि last 2 are Quetta and Zalmi Quetta and Zalmi सोहेब भाई आई थिंक इस्लामाबाद जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा एक चीज बड़ी सरप्राइजिंग इस्लामाबाद की प्रॉब्ली पहली दफा उसका नेट रन रेट आपको माइनस में देखा होगा लेकिन वो उसको कवर कर लेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड विल क्वालिफाई एंड आई थिंक कराची विल क्वालिफाई हाँ my prediction is कि I think Karachi will qualify क्योंकि उनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है and it would come down to Islamabad and Zalmi so in that I would back Islamabad to pull it off so yeah for me कराची नहीं आगे जाता देखते हैं कराची के पास मार्जिन बहुत कम है मार्जिन बिल्कुल नहीं ऑफ एनी देखो कराची अगर आगे नहीं जाते ना मैं ये साइंस की शर्ट पहनूंगा अच्छा कल किसका मैच है कल कराची वर्सेस किसका है ज़ल्मी आई थिंक पेशावर तो बॉयज जल्दी से प्रेडिक्शंस आप बताओ शफकत it's Karachi versus Zalmi and I would be going with Karachi because I have literally lost my faith in Peshawar Zalmi's bowling attack. They can be taken to cleaners by any team. I would say any team. हालांकि सबसे कम रन्स जो उनको मारे हैं वो आई गेस क्वेटा ने मारे हैं 154 समथिंग था उसके अलावा जिसने भी उनके बॉलिंग अटैक को फेस किया उसने ज्यादा रन्स किए हैं तो आई एम गोइंग विद कराची क्योंकि कराची हैव बीटन 2 of the top teams in this tournament and they'll be in very good spirits plus I want to see people like Tayyib Tahir Irfan Niazi them doing well हसन भाई वेरी क्विकली कराची और पेशावर में से कौन Yeah, I want Mohammad Haris to have his moment of the PSL. So more of a wish than a prediction that Zalmi does well. Okay.
अच्छा Sohaib, कराची मतलब मेरी प्रोडिक्शन कराची ही है, लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ जेम्स विंस लीविंग, सो हु वुड रिप्लेस हिम, यही देखना पड़ेगा। वेदर हैदर अली कम्स इन और कासिम अकरम, ताहिर ऊपर आता है और कासिम बीच में आता है, या हैदर आके ओपन करता है, तो दैट्स अ क्वेश्चन दैट रिमेन्स। all right. So, guys, these were our predictions. You can share yours by अपनी तो using the बता hashtag दो, ask. अपनी तो मेरी तो बता वो दो। है ना, ऑब्वियसली मैं कराची फैन हूँ तो ऑब्वियसली कराची बोलूंगा यार, लाइक दैट शुड बी, that should go without saying. So if our viewers want to share their predictions, they can always tweet at us using hashtag AskPSLnama. We'll try to feature all the tweets and all the comments on the show. So on that note, we have the hashtag comments and tweets that we didn't feature in the previous episode, so we'll feature now. Okay, so Farjad Khan writes, this is the first one. Do you guys agree कि बाबर आजम की T20 में जगह सिर्फ इसलिए बनती है कि वो कैप्टन है? He doesn't want to leave the opening spot and he couldn't be fit in below order considering his lower strike rate. So guys, let's take 20 seconds each to give their opinions. I'll start with Shavkat. Shavkat, very quickly if you can That's not give that's your not the opinion. sole reason कि वो कैप्टन है. इससे पहले he came into this T20 team, and if you remember कि जो सरफराज की नंबर 1 T20 टीम थी उसमें भी बाबर था इस जगह पे. तो I would say कि he is there on merit, and there are going to be days when other batsmen are going to struggle on certain strips where Babar is going to excel. तो at least 2024 के वर्ल्ड कप तक you will have to bear with it if you are anti Babar. All right, Sohaib bhai. यार मैं कल भी इस बात का यही जवाब दिया था कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ हैविंग एंकर्स इन माय टी20 टीम। बाबर आजम इज अ प्लेयर हु हैज ट्रेमेंडस कैपेसिटी, एंड मैं चाहूंगा कि वो तेज स्ट्राइक रेट से खेले। अगर वो ये चीज करता है तो बेहतरीन है, ही हैज द एबिलिटी टू डू इट, एंड इस अगर नहीं तो फिर आई एम नॉट अ फैन ऑफ हैविंग एंकर्स इन माय टीम। All right, Hassan bhai, very quickly if you can sum it up, your thoughts. Yeah, he makes the team very easily. He has the ability to strike it at 200 whenever he wants. It's just a factor of having the pool of players to support him. I think वो कर सकता है. I think Babar makes the team because you need people who can actually kind of like you need one guy like Babar at least in the team. So by default, because he's the captain, he makes that team. If he wasn't the captain, then I'm sorry, he doesn't make the team. So लेकिन क्योंकि बाबर जो है वो उसकी सर्विस बहुत अच्छी है फाइट बॉल की, which means कि he can get out of, मतलब सर्विस in the sense कि he knows how to get out of difficult situations. So for me, he makes it, but by the skin of his teeth. Okay, moving on to the next hashtag is, do you think Afan Ali, sorry, writes, do you think Saim, Ahsanullah and Azam will make it to the national squad? Hassan bhai, very quickly, yes, no. Yeah, they should. Logically speaking, सिर्फ मसला ये है कि it's an ODI year for us. We have some T20s versus Afghanistan. उसमें तो no doubt होना चाहिए, इन तीनों को होना चाहिए. If not all three, at least Sam और सानुल्लाह का तो बिल्कुल केस बनता है. All right, so hey, very quickly if you can give your thoughts. आई थिंक आजम पे तो हम काफी लंबा टच कर चुके हैं। साइम और एहसानुल्लाह आई वुड से कि हाँ उनको चांस मिलना चाहिए, स्पेशली अगर ओडीआई वर्ल्ड कप का। पर आजम को लेके लाइक यू अगेन अभी फिनिशर रोल आप देख रहे हो इंडिया में कौन प्ले करेगा। हम टी20 को देखे भी आजम की फील्डिंग को लेके थोड़े से स्केप्टिकल है। 50 ओवर का आई कांट से, सो आई प्रॉब्ली वोट इन फेवर ऑफ साइम एंड एहसानुल्लाह मोर राइट नाउ, लाइक बिफोर द वर्ल्ड कप। Shafkat, very quickly if you can sum up that response of yours. Ihsanullah is a must. He's surely going with Pakistan team the next time they play a white ball game. और I would say कि आजम के ऊपर थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा इनको, and साइम उसको थोड़ा टाइम है. I don't think he's going. I think Ahsanullah, I would say that he's the guy that showed the most promise to walk into the Pakistan setup right now. Saim का ये है कि he's a bit of hit and miss. I think वो experience से आएगा उसको, तो उसको एक दो सीजन अभी एक सीजन और दे देने में, पूरा सीजन होगा, हाँ, एक्सपेंडेड पूरा सीजन season होगा. होगा। और आजम का मैं ये कहूंगा कि I want to see Azam in Pakistan team because he has the skill set जो हमें चाहिए. So hopefully उसका PSL बाकी का remaining अच्छा जाए and he contributes towards Islamabad wins in the coming games ताकि उसके लिए जगह बने, because उसका जो skill set है बहुत ज्यादा है.
Moving on to the next hashtag. Zainul Abidin writes, I wanted to know your opinion on Abdullah Shafiq seeing his batting in the last match. And with the test career he had till yet, what do you think of him getting into the ODI side for the 2023 World Cup? Okay, I think we've touched on Abdullah like extensively I, today, na? Sure. we have touched on Abdullah extensively, so I'm not going to go to Shavkat or Sohaib. Hassan Bhai has a very big smile on his face. So Hassan Bhai, in the next 20, I'll give you the next 20 seconds to sing praises for Abdullah. So yeah, the floor is yours. Yeah, in an ideal world where there is world peace, where there is no acid rain, and there is no global warming, Abdullah replaces Imam ul Haq. Don't hate me for this, but please, Abdullah replaces Imam without a shadow of a doubt in the ODI side. Fakhar is one of our best openers. Imam की ठीक है average पे अक्सर बात आती है, but the strike rate is not up to the mark, and there are some limitations with his range. Abdullah Shafiq over Imam easily. All right. So the next hashtag Zainul Abdin again writes, pretty thorough and realistic analysis. Really enjoying the show, guys. Keep it up. Thank you, Zain sahab. That's another reminder of the Patreon account on a lighter note. And thank you so much, Zainul Abidin. We are Zainul Abidin. आज शफकत भाई को तो एक आध और वो आएंगे वो शफकत भाई को रोज आते हैं वो रोज आते हैं वही ये व्यूअर्स के लिए कि अगर इनको थोड़ी सी डिटेल चाहिए तो शफकत भाई को ट्विटर पे फॉलो करें वो खुद बता देंगे. Alright, so if we can pull the next hashtag. Okay, so the next hashtag is the next Q is by Brownie Monster. They are writing, how are LQ getting their drafts and 11s on point without having any data gurus on their side? काफी अच्छा सवाल है. I think they have data gurus. I think they have data gurus because Mohsin Sheikh, I think, works for Lahore, if I'm not mistaken. They in one of the shows, Salman Butt एक interview में बैठा था. Salman Butt was with Lahore Qalandars for a while, and he was mocking one data analyst that they had at that time, and Misbah was playing for Zalmi और उनका I think लमी चाह ने bowling कर रहा था, and उसके analyst ने बोला कि आप मैसेज भिजवाओ कि इसको गूगल ही करें, और सलमान कहने लगा कि मैं और आकिब भाई हंसने लगे, लेकिन उसने बोला आप करें, और हमने मैसेज भिजवाया तो मिसबा ने छक्का मार दिया. एंड अब्दुल्ला अंसारी ने फिर उसको ब्रेक डाउन किया था, ये ग्रास रूट वाले अब्दुल्ला अंसारी ने, कि जब मिसबा को उसने लेग स्पिनर किया लामी चाने ने तो मिसबा ने छक्का मारा, और जब उसने वाकई गुगली करी तो मिसबा ने उसको मिस टाइम किया. सो प्रॉब्ली डेटा एनालिस्ट जो है वो अपना डेटा देख के सही कह रहा था. सो दे डोंट बिलीव इन इट. व्हाट समीन गुल आई थिंक आंसर्ड, समीन गुल कह रहा हूँ, समीन राणा आंसर्ड इट इन टुडेज इंटरव्यू के उनका जो पीडीपी है उस पे उनका जो वर्क है वो बहुत जबरदस्त है. वहां से जो प्लेयर निकल के आ रहा है आई थिंक वो उनको बहुत ज्यादा. Yeah, but they have performance analysts. The thing is, people don't know this, but they have Mohsin Sheikh. Mohsin Sheikh is like, he's worked with Pakistan under 19. He is the performance consultant for Afghanistan cricket board, and they have this one guy. He doesn't have any prior cricketing experience, but his name is, I think, Nadeem Edgar, and he's the performance, I think, also another performance analyst for Lahore Qalandars. The thing that I think they don't do is they don't prop their, जैसे आयु करता है ना अपनी, या जो मुल्तान सुल्तान करता है अपनी डेटा टीम को सामने लाके कहता है कि ये मेरी डेटा टीम है. I think Lahore doesn't do that. I think लाहौर का डेटा प्रॉब्ली सिलेक्शन एंड ड्राफ्ट तक है. उसके बाद जो है अतीक उस जमाने में एक इंटरव्यू में बोला था when he was with Lahore, he didn't have good things to say about Lahore Qalandars, especially Aqib Jabir. He said कि क्लब की टीम की तरह चला रहे होते हैं, किसी को भी बैटिंग पे भेज देते हैं, किसी को मतलब आकिब जावेद के मूड के हिसाब से टीम चल रही होती है अकॉर्डिंग टू अतीक उस जमाने. सो आई थिंक शाहीन के आने से, शाहीन इज अ वेरी गुड कैप्टन. उसके डिसीजंस, उसकी स्ट्रेटजीज वगैरह अच्छी हैं, जो ऑन फील्ड वो करता है वो सारी कॉल्स अच्छी होती हैं, जिस वजह से एक डिफरेंस नजर आया है ऑन फील्ड या ऑन फील्ड उनकी परफॉर्मेंस में. आई थिंक बैक चैनल में जो सिलेक्शन जो ड्राफ्ट्स वगैरह है उसमें ऑलरेडी दे वर वर्किंग वेल विद द पीडीपी है. जितने डेटा साइंसेस है वो सारी अपनी पीडीपी में लग रही होंगी उनके, प्रॉब्ली उसमें नहीं लगती, ड्रेसिंग रूम में नहीं लगती. Can I just add on to Sohaib bhai's point? Just wanted to add to that. एक तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप कहीं पे भी क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये ऑफ कोर्स ये रूल होता है कि आपने कोई मर्जिंग भी खिलाना है, और आपका जो नेशनल प्लेयर्स होते हैं उसमें कैप टू रन कैप.
उसमें लाहौर कलंदर्स आर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइज नॉट जस्ट इन PSL बट अराउंड द वर्ल्ड कि दे हैव गॉट दिस होम ग्राउंड टैलेंट जिसके लिए उनके पास प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो उसको तैयार करते हैं और फिर लेके आते हैं. बाकी टीम्स यार आप देख लें ना, वो सलमान कोलैब मसूद भी करते हैं, हाँ, कोलैब करते हैं यार. हारिस को भेजा, दिलबर को मेलबर्न स्टार्स में भेजा यार. ये वहां से उनको वो आता है. या सुफियान मुकीम खेल रहा है एक तरफ और एक तरफ जमान खान खेल रहा है ना, तो या ताहिर बेग खेल रहा है, तो ताहिर बेग को जितना उसकी फ्रेंचाइज ने तैयार किया ना होम ग्राउंड टैलेंट को उतना जालमी ने अपने इमर्जिंग पीक पे काम नहीं किया. एक बात ये है. दूसरी बात ये है कि जो सोहेब भाई ने एक और बड़ी अच्छी बात की कि एक तो शाहीन आ गया. शाहीन इस टीम के इस एनवायरनमेंट में 2018 से खेल रहा है. हर साल वो आता है, हर साल वो राणा ब्रदर्स के साथ भी बैठता है, हर साल वो आकिब के साथ भी बैठता है. तो जो आपका थिंक टैंक का जो कोर है ना, दैट्स क्वाइट द सेम. उन्होंने ह्यूमिलेशन भी देखी है, उन्होंने रनर्स अप भी गए हैं, वो उन्होंने ऑफ सीजन में टीम्स मिलके बनाई है. अब वो लोग मिलके टीम्स बना रहे, दे नो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कलंदर्स टीम, दे नो व्हिच ओपोनेंट्स वी आर फेसिंग. ये 5 टीमें हैं और इनको हमने हर सीजन फेस करना है. तो दिस इज द काइंड ऑफ टीम दैट वी नीड. Right. Oh, Hassan, do you want to add something or do I go to the next hashtag? Move forward because we have a lot of comments pending. Okay. Abdu Shakur asks, with Rashid hitting helicopter of length, how long until we see him doing this to bouncers? Pretty soon, I think. Pretty soon. Yeah. Relentless खेलता है. He attempts the shot and without any risk factor involved नहीं होता. Helicopter shot मारी थी, so that was kind of that actually. वो shot of good length पुल किया, उसको हेलीकॉप्टर किया और फिर एक दफा जब बॉल पहुंची दोबारा से वो बैट को हेलीकॉप्टर ही करना. ये बात भी है कि राशिद does not have this nitty-gritties or sophistication that a proper batsman has to show out there on the crease. तो राशिद को पता है मेरा मेन मकसद 4 ओवर का है. I can wield the willow, so I'll be doing it on my own. तो जो बंदा इतने प्रेशर के बगैर खेलता है ना, तो ये एक टेस्ट केस भी है for all the batters out there. If you play freely, if you try to express yourself, तो बहुत सारी चीजों की possibility है. Yeah. Okay, so can we have the next hashtag, please? Thank you. Abdul Shakur, another question is, where do we sign the petition to remove the love between players on the field? अच्छा, वकास भाई ने इसके बारे में ट्वीट की थी. आई एम नॉट अगेंस्ट इट व्हाट हैपेंड बिटवीन हारिस एंड शादाब टुडे. मेरे हिसाब से इट्स कंप्लीटली फाइन. नहीं, मैं इसलिए अगेंस्ट हूं क्योंकि वी ऑल काइंड ऑफ लाइक, आई मीन वी हैवंट प्लेड कंपेटिटिव. आई एम नॉट गोना से दिस बिकॉज़ फिर लोग पीछे पड़ जाएंगे, भाई तूने क्या खेला है, राइट? तो आई एम जस्ट गोना से कि कंपेटिटिवली जब आप खेल रहे होते हो ना, और आप जब बैट्समैन अगर आप हो और आप आउट हो जाओ, तो यू डोंट वांट एनीबडी इन योर लाइक vicinity within like 50 meters to come and tell you that you've gotten out. उस वक्त बहुत ज्यादा इंसान का खून गर्म हुआ होता है. और अभी जो है ये हारिस जो कर रहा था, इट्स नॉट इवन लाइक स्पोर्टिंग, उसमें भी ये अच्छा नहीं होता है कि आप ऑपोजिशन के बैट्समैन को इस तरह जो है तंग कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो. शादाब ने बहुत रिस्ट्रेंट दिखाया यहाँ पे. ये कोई और होता तो नहीं दिखाता इतना रिस्ट्रेंट. एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद फ्रेंडशिप्स. आप अगर क्लब के मैच भी खेलो या आप अगर जो है कोई फ्रेंडली भी खेलो किसी रीजन में या कहीं जाके किसी टीम के खिलाफ, तो उसमें भी अगर कोई आउट होता है तो इस तरह नहीं करते हैं. दिस बेसिकली डिपिक्ट्स के लैक ऑफ सीरियसनेस इन द कंपटीशन. आई एम गोना पुट दिस आउट देयर. क्योंकि जब आप अब क्या है, मैं यहाँ पे मैं एक चीज बस छोटी सी ऐड करना चाह रहा हूँ कि द प्लेयर्स आर नॉट द ओनली स्टेक होल्डर्स इन द टूर्नामेंट. अवाम इज द स्टेक होल्डर. अवाम, आप जो फ्रेंचाइज जो अवाम देख रही है ना, players do not realize that. They should realize that Awam is the stakeholder. I don't think it's important for players to realize that. I think it is important for players to realize that because Awam stakeholder है. Awam जो है आपकी पैसा जनरेट कर रही है. आप PSL do that. तो गलत है ना यार. कोई अगर एक चीज गलत हो रही है तो what I think about it is there has been an emergence in the younger generation 11-year-olds watching cricket, and I think they've been instructed to keep it family friendly. एक ये एंगल है इस पे कि कहीं से इंस्ट्रक्शंस इस पे आती हैं कि keep the show family friendly. और दूसरा ये है कि they are a very closely knitted bunch जो यार नहीं होता.
यार मैं सब चीजें मानने के लिए तैयार हूँ, मैं हर चीज मानने के लिए तैयार हूँ, फील्ड में ये नहीं चाहिए, बाहर निकल के लेट्स नाचो। लेट्स एग्री टू डिसएग्री ना, सबके अलग पॉइंट है। Yeah. मैं कह रहा हूं, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, फील्ड में नहीं, फील्ड में यू आर देयर टू डू अ जॉब एंड डू अ जॉब, राइट। बाहर निकल के आपको जो करना है करो यार, आप हूट करो, नाचो गाओ, जो करना है करो, फील्ड में नहीं करो, दैट्स दी ओनली पॉइंट। क्योंकि स्टेक्स लगे हुए होते हैं फैंस के भी, और जो आज जो इतना पैसा ये चीज जनरेट कर रही है चीज, ये इसी वजह से कर रही है। तो इसलिए आई पर्सनली थिंक दैट वाज नॉट अ गुड लुक, एटलीस्ट इन दैट मोमेंट, जब दूसरे ऑपोजिशन का कैप्टन आउट हुआ है और आप जो है हंसी मजाक कर रहे हो। आई डोंट थिंक दैट्स नॉट व्हाट आई वुड डू। एनीवेज, मूविंग ऑन टू कमेंट्स, बहुत सारे हैं, विल जस्ट रन इट बाय वेरी क्विकली। साद जाहिद राइट्स, Sohaib bhai, please wear this shirt in support of all the teams that play against QG going forward. And that's what the plan is from here. But I think कोयटा ग्लैडिएटर्स की लग इतनी बुरी है कि मेरी शर्ट की लग अच्छी हो जाएगी, लेकिन कोयटा नहीं चल के देगी। Okay, then I don't know. What is the producer so interested in this that they are writing who has warranted a call up for the national team so far from this season of the PSL? I think Ehsanullah. Ehsanullah. Okay, Sayyid Amir Shah. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Walaikum salam. Okay, Hanan Malik. One of you guys are trolling Sohaib Malik. He saved PZ assets for 2 years and 2 flop games. You are writing him off, and hosting a show doesn't suit Waqas bhai because he is so biased. Oh. Yeah, the problem is that I've seen Sohaib Malik since 1999. So my bias has like 20 years of cricket behind it. It's not कि मैंने मलिक को आज देखा है. So like I mean if you think इसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा अभी जो पिछले कमेंट पे आप लोग बात कर रहे थे, एंड मेरे माइंड में पता है क्या चल रहा था? मेरे माइंड में ये चल रहा था कि द नेक्स्ट टाइम शोएब मलिक फेल्स और डू समथिंग कि वो पेस के अगेंस्ट नहीं खेल सकता, तो तारिक सईद ने कहा था कि दर्जी जब तक जीता है तब तक सीता है। तो आई वाज थिंकिंग कि शोएब मलिक अब वो दर्जी बन चुका है जो ईद पे लोगों के कपड़ों को लेट करता है, और ही इज नॉट डिलीवरिंग दोस थिंग्स। यार the problem is मलिक को हमने 99 से देखा है। It's not 95 में अंडर 15 वर्ल्ड कप खेल रहा था एट लॉर्ड्स फॉर पाकिस्तान। वही ना यार, along with कामरान अकमल एंड बाजिद खान। there are 20 years। आर्यस के साथ खेला है, शोएब अख्तर के साथ खेला है, अच्छा, moving on. बेंजामिन Guys, moving on to the next. Okay, stumps down, morale to rights. What's the data on Fakhar Zaman's wide hacking normal deliveries onto the stumps? Got to be his favorite mode of dismissal. काफी दफा कर चुका है फखर, ये काफी दफा कर चुका है। So I think it's like a 30% probability of Fakhar underage going on to his stumps now. यार द वे ही वेट्स इज बिलो, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी को इस तरह से आउट होगा, तो फिर आपको उस तरह के ऑर्थोडॉक्स शॉट्स नहीं मिलेंगे जिस तरह के उसने को मारे थे या एरिया को मारे थे, तो उसके साथ ये चीज है उसने अपनी में से। So okay, the next comment is by Usman Khairi. Usman bhai, once again, very good friend of all four of us. Yeah, boys, the bench strength, as impressive as it is limited to 4 overs cricket. We keep churning out good T20 prospects, but the longer formats remain compromised. Shouldn't we be concerned about that? Good question, Usman bhai. Very good question. This is very close to my heart. अभी मैंने थोड़ी देर पहले ना जो पिक्चर पेंट की थी ना of an ideal world. I think again in an ideal world we'd be having more of ODIs and test matches and less of T20, but because monetization इतनी ज़्यादा आगे T20s में ज़्यादा I mean it's just that we get paid more to do less, so why wouldn't any player want to do that? But उसका byproduct क्या है कि the beauty of the game जहाँ पे थोड़ा balance आता है नजर,
of a team struggling, recovering, and then coming out on top, जो आपको फिर भी ODIs में नजर आ जाता है, ये टेस्ट में नजर आता है, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. And I wish that जो governing bodies हैं, especially ICC, they try to give more weightages in a longer format, ideally ODIs and tests. I know there will be a lot of people who disagree with me on this, but I'm a bit of a purist when it comes. थोड़ी सी legacy है ODIs की भी, T20s की भी, and there's more balanced competition between bat and ball when you have to play for such a long. और इसमें एक बात मैं ऐड करूंगा, आपकी जो लास्ट 2 ODI सीरीज थी, एक तो नेदरलैंड्स के खिलाफ जो आखिरी मैच था सीरीज का, और दूसरा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आखिरी मैच था सीरीज का, उन दोनों में आपकी बैटिंग ने बहुत बुरे तरीके से कोलैप्स किया. तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स कि आपकी जितना भी स्ट्रांग बेंच हो, जितने अच्छे प्लेयर्स हो, यू विल हैव टू हैव दोस प्लेयर्स जो अंदर खड़े हो, डिग इन करें, फ्रंट पे एक्सेलरेट करें. अच्छा, मजे की बात ये है यार, लेट्स गो ऑन सम अदर कमेंट्स. बात लंबी हो रही, कल करेंगे बात. Okay, so Saad is right. Given that all the data-driven teams do well on most occasions, I wonder why KK hasn't cracked the code yet. They have Mazhar and Imran Ahmed Khan, I believe. They both are not with the team. Mazhar was in South Africa and Imran is with like Ep6. Like. Okay, मैंने कुछ इसके बारे में सुना है, right? अब मैंने ये सुना है, right? So इसकी authenticity, take it with whatever grain of salt you want. कि even though these guys were there, but KK ने मतलब इनपुट्स इतने ज्यादा अच्छी तरह नहीं लिए हैं, एंड इट वाज लाइक वसीम भाई कॉलिंग द शॉट्स. ये मैंने सुना है. आई मीन एज पर लाइक व्हाट आई हैव हर्ड, केके ने खाना पूरी के लिए इन दोनों को रखा था, और फिर उसके बाद मतलब रिजल्ट सामने आपके. तो ये अब बात सच है गलत है, इसकी वजाहत जो है वो केके के लोग कर सकते हैं. इसका स्निपेट बना के मजहर भाई को टैग करते हैं, उनसे फिर आंसर लेते हैं. अब आप की जो मर्जी आप करें, आई एम नॉट गोना स्टॉप एनीबॉडी. अच्छा, एक और कमेंट है, thumbs down moral to rights. So nice of Hassan to end the betting story with the disclaimer, betting is haram. That's a responsible senior citizen. Right. Okay. Usman Khairi bhai again writes, speaking of betting and that World Cup, Moin was fined and eventually officially dumped for going to the casino. Yes. This is the we started winning after Moin was fired. Yeah. So basically, Moin had to like lose money and his job to for eventually for Pakistan to do well. Something that Nadeem Umar has to look into. Okay, so I think that's there's one comment. They were saying that the Moin had a poker face while Azam hit 97 against Quetta. हाँ, वो कल हमारी परसों डिस्कशन हुई थी ना पोकर पे. अरे it started, the poker discussion started from here. Yeah. So I guess this marks the end of all the comments. और बहुत लंबी एपिसोड फिर हो गई है यार, हम लोग 1.5 घंटे की कर रहे हैं. This is bad. I think I was thinking कि आज हमारी जल्दी खत्म हो जाएगी, बट वो 2015-16 पे जब हम गए ना, वहां जो है ना वो कहानी खराब है. भटक जाते हैं. यार इतना मवाद, मैं यहाँ पे अब व्यूअर्स को बताते चलो, इतना मवाद है ना कि अगर हम लोग बाकी बैठ के बात करने लगे ना तो रातें गुजर जाएंगी. लेकिन यार हम स्पेसेस इतनी लंबी स्पेसेस करी है हमने, स्पेसेस इतनी लंबी करी है. तुम लोग तो सिर्फ ज्वाइन करते थे वो स्पेसेस, मैं होस्ट करता था और मैं मेरा दिमाग खराब हो जाता था. अरे मैं वकास में है ना, एक दफा रिक्वेस्ट कर रहा है हसन में से, यार मेरी 1% रह गई है बैटरी, ये कभी भी स्पेस बंद हो जाएगी. सही है, सो प्लीज आप ले लो यहाँ से. तो इसलिए तो अच्छा गाइस, आई थिंक वी शुड एंड दिस. सो थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग. बहुत मजा आया. This was a very good episode. Once again, we had a lot of fun. I hope you guys had a lot of fun. Thank you to all our panelists, Sahfqat, Sohaib bhai, and Hassan bhai,
for joining. We'll be doing this tomorrow once again, as usual, after the evening game between Karachi and Peshawar. So hope you guys can join us then. Until then, it's good night and goodbye from all of us. See you tomorrow, inshallah. Take care. Allah Allah Hafiz. Hafiz. Allah Hafiz.